Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to find out the questions related to CCS CCA rules, right? From the paper 2018. So, basically, with the help of this, we will be able to find out which questions are important, right? Since we have read this CCS CCA rules first time, so अभी हम अपना revision इस तरीके से करेंगे. So, let's begin this. Okay. सिर्फ CCS CCA rules की बात करेंगे, okay? And I think we can do is can have this paper physically if we have, so that would be great because ऐसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा. Yes. Okay, then we go to DFPR 1970 object head. For this ऑब्जेक्ट हेड वाला किसके अंदर था? पर DFPR के अंदर ऑब्जेक्ट हेड यहाँ DFPR के अंडर में. These are all related to DFPR. We're just looking for questions that relates to CCC. Okay, here we get our first question. It says question number 83. We simply move to question number 83 here. कहता है after conclusion of the inquiry in terms of the provisions contained in the CCS classification control and appeal rules, the following shall be the inquiry report. Okay, before we do that, let me just read this. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में कि दो चीज़ें हम इसमें करना चाहते हैं. सबसे पहले ये रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है, इसका जो इंडेक्स है हम वो पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट. 1965 तो समझ में आ गया, बट इट इज ऑन फर्स्ट ऑफ डिसम्बर 1960. तो इधर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट अ पीस ऑफ पेपर सो दैट ये हमें याद रहे कि हाँ ये एक जगह पर हमारे पास आ जाए सबका. कब कब हुए थे बात करते हैं आपका सीसी रूल्स के बारे में. सीसी जो है आपके वो 1 दिसंबर 1965 को आए. चलिए बात करते हैं क्या है एग्जैक्ट के बारे में. यहाँ पर चलते हैं हम. सिर्फ ये क्या करना है, अभी तो हम सिर्फ इंडेक्स याद कर रहे हैं, हम इवन इसका अंदर का भी नहीं रीड कर रहे हैं, ठीक है. तो इसके जो कंटेंट्स हैं हमारे पास क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, इंटरप्रिटेशन, ओके, देन वी हैव एप्लीकेशन और like persons to whom these are applicable, and statutory rules have the force of law and alterations in conditions of recruitment and services notified by amendment to statutory rules. Alteration in the condition of recruitment and service to be notified by the amendments to statutory. Okay. Classification of services है आपकी. We have constitution of central civil services. Classification of post है. We are just reviving and try to revise the index actually basically so that we have some idea about it.
classification of services है आपकी. Then we have constitution of central civil services. Then we have classification of posts. Okay, and then we have general central service. Appointing authority कौन है? Appointment to group A services and posts. Delegation to administrators. Delegation of powers. Secretary to Northeastern Council. Delegation of powers to administrator of Andaman Nicobar Islands. Appointment to other services and posts. Okay, then हमारे पास 10th इसका जो है that is suspension. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो CCC रूल में सबसे पहले है शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, सेकंड है इंटरप्रिटेशन, थर्ड है आपका एप्लीकेशन, फोर्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, फिफ्थ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिक्स्थ है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, सेवन्थ है आपका जनरल सेंट्रल सर्विस, एट्थ है आपका अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट, नाइन्थ है आपका अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट, एंड टेंथ है आपका सस्पेंशन. ठीक है, एंड देन वी हैव पेनल्टीज. ठीक है, इसमें पेनल्टीज में क्या क्या है? दैट इज departmental in respect of misconduct committed in earlier employment, action against employees who are later found ineligible, unqualified for their initial recruitment, independence and impartiality to be maintained in official dealings. अभी penalties की बात है. ठीक है, disciplinary procedure against an employee officiating in a higher post on ad hoc basis, action to be taken for late coming when no casual leave at credit, distinction between censure and warning, at least censure to be avoided if official to be penalized, promotion to a higher grade or post, clarification regarding effect of warning etc on promotion, reduction to a lower stage in a time scale, reduction to a lower service grade or post or to a lower time scale, reduction to a lower grade service post not held before not permissible, reduction to a lower grade service post not held before not permissible, minor penalty proceedings against official due for retirement to be finalized before retirement, entire loss should be recovered from the delinquent official, no limit to quantum of period of recovery. Okay. Action on refusal of promotion. Then we have entry of punishment in confidential roles. Registering name and employment exchange for higher post not permissible when penalty is in force. Then we have regulation of pay on imposition of penalty under CCS CCA Rules 1965. Okay. Then we have disciplinary authorities. That is power delegated to Chief Commissioner Andaman Nicobar Islands. Officers performing current duties of a post cannot exercise statutory powers under the rules. Okay. Current duties of a post. Okay. We have clarification about Rule 1214 when the competent authority is unable to function as the disciplinary authority. Okay. Okay. Authority to institute proceedings. Then we have a procedure for imposing penalties. इसके अंदर क्या है? 14 नंबर है आपका. बताया किस तरीके से प्रोसिक्यूशन शुड प्रोसीड. प्रोसिक्यूशन है प्रोसिक्यूशन शुड प्रोसीड डिपार्टमेंटल एक्शन. ठीक है, prosecution should proceed departmental action. Then we have guidelines for checking delay in grant of sanction for prosecution. Then we have guidelines for dealing with disagreement with defense assistant and CVC in cases of granting sanction for prosecution. Adherence to guidelines issued by DOPD regarding grant of sanction for prosecution. Simultaneous action of prosecution in court and initiation of departmental proceedings. Simultaneous action of prosecution and initiation of departmental proceedings. Instructions to avoid procedural delay in the disposal of discipline cases. Instructions to avoid procedure delay in the disposal of discipline cases, whether charges can be dropped at the stage of initial written statement of defense. Adherence to time limits in processing of disciplinary cases, timely completion of disciplinary proceedings, departmental inquiry proceedings, improving vigilance administration, timely finalization of departmental inquiry proceedings, improving vigilance administration. Inquiry है फिर आपका time limit under rule 14(7) is with reference to date of receipt of documents by the inquiring authority, dispensing with inquiry and circumstances. Therefore, steps for conducting inquiry in case of allegation of sexual harassment. Seniority of the chairperson of the complaint committee. Central Civil Services Classification CCS Rules 1965, 1st December 1965, guidelines regarding prevention of sexual harassment of women at a workplace. Unless unavoidable, the disciplinary authority should refrain from being the inquiry officer. Immediate superior functioning as inquiry officer. Inquiry officers to be senior rank officers inquired against. Procedure for empanelment of retired officers as the inquiry officer for conducting departmental inquiry. Completion of disciplinary proceedings through video conference in the wake of COVID-19 pandemic.
Grant of honorarium to inquiry officer, presenting officers, PO. Okay. IO or PO, appointing and functioning of inquiry officer. Inquiry to be stayed when application is made against the inquiry officer appointment on ground of bias. Streamlining of conduct of disciplinary proceedings to reduce delay. Guidelines for monitoring and expenditure disposal of the guidelines of the disciplinary cases. Importance of following due process and disciplinary proceeding. Defense assistant हमारे पास. Then we have intimation to be given to the controlling authority of the government servant assisting the accused. Engaging defense assistant posted in another station. Steering days to be to 7 cases for retired government servant appearing as defense assistants. Okay, then we have a permission to engage a legal practitioner for the defense. Inspection of documents, supply of copies of documents and affording access to official records to the delinquent officials. Measures to prevent tampering with records, documents during inspection of delinquent officer. Inspection of documents and furnishing copies thereof to the delinquent. Witness statement of witness recorded at the preliminary inquiry investigation to be read out to him and got admitted as evidence. Examination of witness on behalf of the accused officer. Then we have further cross examination permissible when witness are re-examined. Authenticated statement of amounts drawn insufficient proof. Then we have arguments, written briefs, presenting officer written brief to be served on the delinquent in the first instance. Miscellaneous procedure for initiation proceeding against a group A officer. Then we have procedure to be adopted for different discipline cases to UPSC for advice. Departmental proceeding against government servant procedure for consultation with the UPSC Commission. Departmental proceedings against government servant procedure for consultation with the UPSC. Consultation with the UPSC procedure to be followed while disagreeing the advice of the Commission. Consultation with the UPSC procedure to be followed while disagreeing with the advice of the Commission. Presumption of corruption reasonably arise if large accretion of wealth is not satisfactorily accounted for. Appointment of inquiry officer and presenting officer in disciplinary cases. Dispensing with second stage consultation with the CVC cases. Dispensing with second stage consultation with CVC in the disciplinary cases. Procedure for dealing with cases of disagreement between cases and CVC. Instruction regarding consultation with the UPSC thereof. CVC Central Vigilance Commission cases of difference from non-acceptance of the advice. Procedure for consultation with the Department of Training. Strengthening of vigilance setup, timely payment of subsistence allowance, recommendation of the committee of experts on discipline and vigilance inquiry for Hota committee, recommendation of the experts on discipline and vigilance inquiries, Hota committee. Then we have frequently asked questions on timeline for completing discipline time bound manner under CCS rules 1st December 1965. Then we have 8 to processing of department under CCS rules 1960. Okay. Then we have action on inquiry report. 15th आपका action on inquiry report, that is self-contained speaking and reason order to be passed and to issue over signature of prescribed disciplinary authority, appellate reviewing authority. And फिर we have action on the inquiry report. Okay, self-contained speaking and reason order to be passed and to issue over signature of prescribed disciplinary authority. Not appellate, not appropriate to bring in past bad record in deciding the penalty unless it is made the subject matter of specific charge in the charge sheet itself. Higher disciplinary authority instituting the proceedings competent to impose a minor penalty. Disciplinary cases should be closed on the death of a charged officer. Proper procedure to be observed before termination of the service. Supply of copy of inquiry report to the accused government servant before final orders are passed by the disciplinary authority. Advice of CVC also to be furnished. Censure at least to be awarded while when decided to penalize a government servant as a result of department and warning not to be administered. Time limit for passing final orders on the inquiry report. Then we have final orders should be passed within 3 months. Justification jurisdiction of the CAT in the matter of quantum of penalty against government servant. Then we have a jurisdiction of CAT in the matter of disciplinary action against government servant, communicating tentative reasons for disagreement under Rule 15.2. Okay, these are the action on the inquiry report. Then we have procedure for imposing minor penalties, that is holding of an inquiry when requested by the delinquent. Aid to processing of department proceedings under the CC 1965. Okay. Then we have communication of order, that is decision recorded is final and cannot be varied. Authority to issue warning to a government servant who is transferred to some other ministry, department, or organization. Then we have common proceedings like a procedure of inquiry when two government officers accuse each other. A special proceeding in certain area. Conviction of government servant to be promptly communicated to administrative authorities. Action on conviction on a criminal charge. Guiding principle dispensing with inquiry in case of conviction and other special proceedings. Circumstances. Action on dismissal from military service of person holding line on a permanent civil post. Action when appeal revision against conviction succeeds. Action when appeal oblique revision against conviction succeeds. Consultation with CVC in case of matter where action is taken under Rule 19.
Central agency coming jurisdiction over employees of multi-state cooperative societies like NEFED, CRIPCO. Then we have provisions regarding officer land to state governments, etc. Procedure to be followed when deputation comes to an end. Provisions regarding officers borrowed from state government, etc. Then we have appeal orders against which no appeal lies. That is special provision for appeals in the case of no rejection in the case of rejection by IO for engaging defense from other station. Order against which appeal lies. Appeals against suppression in the matter of promotion. Then we have appellate authority, that is disciplinary action against officers of staff association. Appeal in the case of disciplinary order against an office bearer of an association or union in respect of activities as office bearer. Then we have period of limitations of appeal, form and content of appeal. Then we have consideration of appeal, time limit for disposal of appeal, self-contained speaking in reason order to be passed and to issue over signature of prescribed appellate authority, personal hearing at the discretion of the appellate authority in major penalty cases. Okay, personal hearing at the discretion of the appellate authority in major penalty cases. Okay, then we have implementation of order in appeal, revision and review. Revision में क्या था, self-contained speaking and reason order to be passed and to issue over the signature of prescribed revising authority. Scrutiny of punishment to be made by vigilance officer. Then procedure to be followed while proposing enactment of the penalty already imposed on government servant. Then we have review. Review बोलता है president power of review. Then we have service of orders, notice, etc. Service of orders at residence of subordinate staff not to be made by gazetted officers. Then we have power to relax time limit and to condone delay. ठीक है. Then we have that is copy of advance advice given by UPSC to a government servant. ठीक है. Okay, if we move to page number 200 that is copy of advice given by UPSC to be given to government servant. Advice of UPSC to be communicated to the department, to the delinquent government servant along with final order of penalty. Advice of UPSC to be along with final order of the penalty. Amendment, supply of copy of UPSC advice to the charge officer. Advice of UPSC to be सब कुछ यही कह रहा है. ठीक है. When a penalty is set aside, clarification. ठीक है. Then we have transitory provisions, repeal and saving, removal of doubts. अब इसका कुछ शेड्यूल है हमारे पास. इनके शेड्यूल से हमारे पास 5 शेड्यूल्स हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट 1 में आता है आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए. देन वी हैव ग्रुप बी, सी और डी और आता है सिविल पोस्ट डिफेंस सर्विस. ठीक है. इसमें क्या है, एक्सेप्ट फॉर सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज. सिर्फ ग्रुप ए में एक्सेप्ट नहीं है फॉर सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज. अदरवाइज जो है इसका जो शेड्यूल है वो 5 शेड्यूल्स है. ठीक है. एंड दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 शेड्यूल है इनके. क्या क्या है 5th वाले में तो आपका आता है देखिएगा. ठीक है. तो शेड्यूल आता है हमारे पास इसके अंदर. तो हमारे पास इसमें 35 जो है हमारे जो रूल्स है 35 रूल्स है और इनके कुछ जो है 5 शेड्यूल है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि 35 रूल्स हैं और 5 शेड्यूल है. 5 शेड्यूल कौन कौन सा है. सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए. ठीक है. देन वी हैव सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप सी और सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप डी. ये 4 तो ये हो गए. देन वी हैव सेंट्रल सिविल पोस्ट या फिर सिविल पोस्ट इन डिफेंस सर्विसेज, ये हमारा है. ठीक है. इसके अंदर 2 हैं, ग्रुप बी पोस्ट और ग्रुप सी एंड डी पोस्ट. ठीक है. तो बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए की. इसके अंदर बस यही है सिंपल, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए. पार्ट 2 बोलता है आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी. इसके अंदर क्या है, एक्सेप्ट फॉर सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज. एक्सेप्ट फॉर सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज ग्रुप बी, सी और डी में नहीं आता है. ठीक है. एक्सेप्ट कर दिया उन्होंने, उनके ऊपर ये मतलब शेड्यूल में नहीं आएगा आपका. सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए. ओके. देन ग्रुप बी, सी और डी के लिए है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज. ठीक है. क्योंकि सिविल पोस्ट एंड डिफेंस सर्विसेज के लिए अलग से दे रखा है आपका ग्रुप बी और सी और डी, और ए के लिए तो वो पहले से एप्लीकेबल है ही. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास 5 शेड्यूल्स हैं यहाँ पर. ओके. तो मैंने देख लिया ये है हमारा. अब इसको हम थोड़ा सा जो है इसका जो सब्जेक्ट है पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या क्या है हमारे पास. देखिए थोड़ा ट्राई करेंगे इसको याद करने की.
रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका? शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। रूल नंबर 1 है CCA रूल्स का 1 दिसंबर 1965, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए। कमेंसमेंट हुई थी 1 दिसंबर 1965। याद करने का अगर मैं आपको तरीका बताऊं तो ध्यान से देखिए आपका। अ, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ जाए ना कि इसकी डेट जो है फर्स्ट थी या फिर दिसंबर था, काम बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद आएगा कि हाँ फर्स्ट डेट थी, ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। 1 दिसंबर की बात हो रही है तो 12, मतलब 12 दिसंबर 12 आ गया, और 1 आपका फर्स्ट डेट आ गया, तो फर्स्ट और दिसंबर दोनों को मिलाया कितना होता है? 13, और 13 5 से 65, तो 65। ये तो आपको पता ही है कि 1965 का है ये रूल, ठीक है। बट 1 दिसंबर है तो 1 और 12 को प्लस कीजिए और इंटू 5 कर दीजिए। 13, 13 पंजे जो है 65 होता है, तो इसलिए 1965 का आ गया। इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल है आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। फर्स्ट रूल है आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। फर्स्ट आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। रूल 2 है आपका इंटरप्रिटेशन। रूल 3 है आपका एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारे पास इसको धीरे धीरे करते चलेंगे, कोई आपको वो नहीं है। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। रूल नंबर 2 है आपका इंटरप्रिटेशन। नंबर 3 है आपका एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन, ठीक है। देन फोर्थ है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पोस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, और फिर आता है जनरल सेंट्रल सर्विस। जनरल सेंट्रल सर्विस, तो हमारे पास क्या है आपका? रूल नंबर 1 है आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। रूल नंबर 2 है इंटरप्रिटेशन। रूल नंबर 3 है आपका एप्लीकेशन। नंबर 2 इंटरप्रिटेशन, 3 एप्लीकेशन है। रूल नंबर 4 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। 5 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, ठीक है। देन वी हैव जनरल सेंट्रल सर्विस। 7th है आपका जनरल सेंट्रल सर्विस, ठीक है। आपको देखो इसमें पता ही है, 10th वाला जो है आपका सस्पेंशन है। 9th वाला जो है अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट, अपॉइंटमेंट्स टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट, और 8th नंबर है आपका अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट एक उसकी किसके रिगार्डिंग है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। appointing authority with respect to appointment to group A services and posts and appointment to other services and posts, ठीक है। पार्ट 2 आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एंड जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस, जनरल सेंट्रल सर्विस, ठीक है। तरीके से हमारे पास ये 10 रूल आपने अभी किया। जैसे कि फर्स्ट आ गया आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, आ गया आपका इंटरप्रिटेशन, थर्ड है आपका एप्लीकेशन, फोर्थ है आपका फोर्थ क्या है? फोर्थ में आपका था आपका क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस आता है सबसे पहले। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, नंबर 6 वाला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट। नंबर 5 पर आया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। फिर यहाँ पर आ गया आपका जनरल सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है। ये 4 है क्लासिफिकेशन, जो पार्ट 2 है ना आपका, पार्ट 2 के अंदर 4 क्लासीफाई किया गया है। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, कॉन्स्टिट्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट और क्लास जनरल सेंट्रल सर्विस, ठीक है। पार्ट 3 है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या है आपका? दैट इज अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट और अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट, ठीक है। 10th नंबर पर सस्पेंशन है। 11 नंबर पर आपका पेनल्टीज है, ठीक है। 11 आपका पेनल्टी है। 12 आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है। 13 आपका अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, कौन है अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, और 14th नंबर है आपका procedure for imposing major penalties, okay. Then we have action of the action on the inquiry report, procedure for imposing minor penalties, communication order, communication, sorry, common proceedings, special procedure in certain cases. Then we have provisions regarding officers lent to central government, state government, etc., and provision regarding officers borrowed from state governments, ठीक है। तो इस तरीके से है हमारे पास। सबसे पहले आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, दूसरे नंबर पर है आपका इंटरप्रिटेशन, तीसरे नंबर पर इसकी एप्लीकेशन। ये आपका पार्ट 1 के अंदर है, जनरल कंडीशन है। दूसरे में आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या क्या आपका पार्ट 2 के अंदर क्लासिफिकेशन है। पार्ट 2 के अंदर क्लासिफिकेशन क्या क्या आता है आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, और फिर आता है आपका जनरल सेंट्रल सर्विस।
ठीक है, ये 4 आते हैं इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। फिर थर्ड नंबर पर आता है आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसमें? अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट और अपॉइंटमेंट्स टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट। ठीक है, अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट और अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट। और फिर पार्ट 4 के अंदर आता है आपका पूरा सस्पेंशन। पार्ट 5 में आता है आपका पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। पार्ट 5 में आता है आपका डिसिप्लिनरी पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। क्यों ना अगर हम इसमें एक बार कर लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स जो है, मतलब इसको कितने पार्ट्स में बांटा है आपने, टोटल 9 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, और 9 पार्ट और एक शेड्यूल है इसका। ठीक है, जिसके जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो हम एक बार वो याद कर लेते हैं, पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले है जनरल कंडीशंस पार्ट 1 में। नंबर 2 पर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन देंगे बस। नंबर 2 पर है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, नंबर 3 पर है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होंगी? ठीक है, देन वी हैव फोर्थ नंबर पर है आपका सस्पेंशन। 5 नंबर पर है आपका पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। और पार्ट नंबर 6 पर है आपका प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज। क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर फॉर पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। पार्ट नंबर 5 है पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। 6 पर है आपका प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज। फिर है आपका 7 नंबर पर है आपका अपील। और 8th नंबर पर है रिवीजन एंड रिव्यू। और 9th नंबर पर है मिसलेनियस। ठीक है, ये भी हमारा काफ़ी कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। और ये है आपका शेड्यूल। देन वी हैव मिसलेनियस। नंबर 9 पर है मिसलेनियस। नंबर 8 पर है आपका रिवीजन एंड रिव्यू। ठीक है, नंबर 8 पर है आपका रिवीजन एंड रिव्यू। नंबर 7 पर है आपका अपील्स। ठीक है, देन वी हैव नंबर 6 पर है आपका, नंबर 6 पर है दैट इज प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज। क्या प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज? देन वी हैव पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। और पार्ट 1 है आप, पार्ट 4 है सस्पेंशन। 3 है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी। 2 क्लासिफिकेशन, पार्ट 1 जनरल। ठीक है, तो हमारे पास है सीसीएस, जो है हमारे पास सीसीएस सीसीए रूल्स है आपका ये। ठीक है, इसका क्या है आपका, फर्स्ट नंबर पर है आपका जनरल कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट पर आपका जनरल कंडीशंस। नंबर 2 पर है आपका क्लासिफिकेशन, पार्ट 2 क्लासिफिकेशन। पार्ट 3 है आपका इसमें वी हैव अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन कौन है इसमें? ठीक है, पार्ट 1 के अंदर है जनरल, पार्ट 2 के अंदर है क्लासिफिकेशन, पार्ट 3 के अंदर है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, पार्ट 4 के अंदर है सस्पेंशन। पार्ट 4 में सस्पेंशन आता है। पार्ट 5 में आता है आपका पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। पार्ट 1 जनरल, पार्ट 2 आपका आ गया क्लासिफिकेशन। और पार्ट 3 में है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी। पार्ट 3 आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी, पार्ट 4 सस्पेंशन, पार्ट 3 अपॉइंटिंग अथॉरिटी, पार्ट 3 अपॉइंटिंग अथॉरिटी, पार्ट 3 अपॉइंटिंग अथॉरिटी, पार्ट 3 अपॉइंटिंग अथॉरिटी। पहला था जनरल, क्लासिफिकेशन, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जनरल, क्लासिफिकेशन, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। पहली आती है कंडीशंस जनरल, फिर क्लासिफिकेशन, फिर आता है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी, फिर आता है सस्पेंशन, फिर आता है पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। पार्ट 5 में आता है आपका पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। फिर आता है आपका प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग। क्या प्रोसीजर क्या है? पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज क्या है, और फिर पेनल्टीज फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज। तो फर्स्ट नंबर पर आता है आपका जनरल कंडीशन। सेकेंड पार्ट में आता है आपका क्लासिफिकेशन। थर्ड पर आता है आपका अपील, नहीं सॉरी, थर्ड पर आपका आता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। फोर्थ नंबर पर सस्पेंशन। फिफ्थ नंबर पर आता है आपका, फिफ्थ नंबर पर आता है आपका पेनल्टीज। पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। नंबर 1 पर आता है आपका जनरल। नंबर 2 पर आता, फर्स्ट पर आता है आपका जनरल कंडीशंस क्या क्या है। नंबर 2 पर आता है आपका, नंबर 1 पर जनरल कंडीशन, नंबर 2 पर क्लासिफिकेशन, नंबर 3 पर है आपका, नंबर 3 पर है आपका क्या है, नंबर 3 पर है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नंबर 4 पर है आपका सस्पेंशन, नंबर 5 पर है आपका पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, नंबर 6 पर है आपका प्रोसीजर फॉर पेनल्टीज, है ना, फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज। ठीक है, नंबर 7, नंबर पार्ट 7 क्या है आपका, नंबर 7 नहीं, पार्ट 7 बोलिए, पार्ट 7 क्या है आपका? पार्ट 7 है आपका अपील। ठीक है, पार्ट 7 अपील। ओके, पार्ट 8 है आपका रिवीजन एंड रिव्यू। और पार्ट 9 पर है आपका मिसलेनियस। टोटल आपके पास 35 रूल्स हैं इसके। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। टोटल आपके पास जो रूल्स हैं वो कितने हैं? 35 रूल्स हैं इसके।
9 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक शेड्यूल है जिसको भी 5 पार्ट में, एक शेड्यूल है जिसको आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है आपका, पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में आता है जनरल कंडीशन, पार्ट 2 आपका है क्लासिफिकेशन, पार्ट 3 है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटीज, पार्ट 4 है आपका सस्पेंशन, पार्ट 5 है आपका पेनल्टीज, ठीक है, पेनल्टीज एंड डिसिप्लिन अथॉरिटी, पार्ट 6 है आपका प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज, फिर पार्ट 7 पर है आपका रिव्यू, नहीं पार्ट 7 पर पहले अपील, सॉरी पार्ट 7 पर पहले अपील, फिर पार्ट 8 पर है आपका रिवीजन एंड रिव्यू, और पार्ट 9 पर है आपका, पार्ट 9 पर क्या है आपका मिसलेनियस, ठीक है। और इस तरह से हमारा एक आता है, एक शेड्यूल है इसके अंदर जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज जिसके अंदर आता है सबसे पहले ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी सी डी, ये 4 पार्ट हो गया आपका। और इसी में ही 5th पार्ट है आपका सेंट्रल सिविल पोस्ट, ठीक है। और ये सिर्फ बी सी डी के लिए है, सिविल पोस्ट एंड डिफेंस सर्विसेज, बेसिकली सिविल पोस्ट एंड डिफेंस सर्विसेज ग्रुप बी और सी और डी के लिए, बस ये है आपका, ठीक है। तो एक ये इससे हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि किस किस तरीके से पूरा ये जो हमारा जो एक्ट है, ये जो हमारा जो रूल्स है, इन रूल्स को किस तरह पार्ट्स में बांट रखा है। तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में क्या याद किया कि एक तो हमारा ये कब जो है इनएक्ट हुआ था, दैट इज 1 दिसंबर 1965 को हुआ था, ठीक है। तो 1 दिसंबर 1965 को नाम है इनका CCS CCA रूल्स, 1 दिसंबर 1965, पहली चीज याद होगी। दूसरा, ये जो है पूरे देर आर 35 रूल्स एंड 1 शेड्यूल। अब 35 जो रूल्स हैं उनको आपने 9 पार्ट्स में बांट रखा है। पहला पार्ट है आपका जनरल कंडीशंस, दूसरा पार्ट है आपका क्लासिफिकेशन, तीसरा पार्ट है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी, फोर्थ पार्ट है आपका सस्पेंशन, 5 पार्ट है आपका 5 पार्ट है आपका पेनल्टीज एंड डिसिप्लिन अथॉरिटी, देन वी हैव 6 पार्ट है आपका प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज, नंबर 7 है आपका दैट इज अपील, नंबर 8 है आपका रिव्यू, रिव्यू एंड रिविजन, रिवीजन एंड रिव्यू, वंडरफुल। और पार्ट 9 पर है आपका मिसलेनियस, ठीक है। तो ये 9 पार्ट्स हो गए आपके। 9 पार्ट के बाद बात करते हैं शेड्यूल। शेड्यूल आपके पास एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर 5 आता है। इसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर है आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए पोस्ट, ठीक है। बस सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए पोस्ट, फिर आता है आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज बी सी डी, 4 आ गया आपका, यानी कि ग्रुप ए फिर बी सी डी, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये बी सी डी है, इनमें आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट सिविलियन जो है वर्किंग इन डिफेंस, ठीक है, एक्सेप्ट सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका जो फिफ्थ जो पार्ट है आपका शेड्यूल का, एक तरीके से जो पार्ट 5 है आपका, दैट इज सिविल पोस्ट एंड डिफेंस सर्विसेज ग्रुप बी और सी और डी, ठीक है। तो वो जो है इसके अंदर आया था, ठीक है। तो बात करते हैं हम आपका कि जनरल के अंदर कौन, पार्ट 1 जो आपका जनरल कंडीशन है उसके अंदर क्या क्या, तो उसके अंदर आता है सबसे पहले शॉर्ट टर्म टाइटल एंड कमेंसमेंट, दूसरा आता है इंटरप्रिटेशन, तीसरा आता है आपका एप्लीकेशन, ये जनरल बन रहा। नंबर 2 पर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं आपके पास 5 चीज़ें क्लासिफिकेशन, 4 तो आती हैं, नॉट 5, तो 1 2 3 तो यहाँ पर हो गया। फोर्थ आता है आपका क्लासिफिकेशन सर्विसेज, देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन सर्विसेज, देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ओके। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट्स, ठीक है। तो आपका ये आ गया 4 5 6 आ गया हमारे पास। देन हमारा आपका जनरल सेंट्रल सर्विसेज, जनरल सेंट्रल सर्विस क्लासिफिकेशन सर्विसेज, ठीक है। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, क्लासिफिकेशन पोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एंड जनरल सेंट्रल सर्विस, ठीक है। क्लासिफिकेशन आ गया। पार्ट 3 है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी में नंबर 8 है आपका अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट, और ये है आपका अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी या अपॉइंटमेंट ए सर्विसेज एंड पोस्ट, और अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट, ठीक है। पार्ट 4 है आपका सस्पेंशन, और पार्ट 5 है आपका पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जिसके नंबर 11 नंबर पर है आपका पेनल्टीज, 12 पर आता है आपका डिसिप्लिन अथॉरिटी, 13 पर आता है आपका अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका जनरल कंडीशन, ये आपको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो पता ही है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल कंडीशंस के अंदर क्या क्या आता है आपका, फर्स्ट आता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन,
Then second we have interpretation. Third है आपका interpretation. Have part two. Part two. Services. Then we have classification. Then we have general service. Pardon, this general central service. ये classification आ गया. थर्ड आता आता आपका appointing authority में कितना था ऊपर ऊपर कितना था 4 इसमें से 7 तो ये नंबर 8 है. appointing appointments to services group A to group A to group A service appointment to group and post appointment to group services and appointment to post फिर आता है आपका B वाला appointment to group B appointment to other services B नहीं बोलेंगे appointment to post और appointment to other services हमारा ये आपका पार्ट 4 आपका सस्पेंशन है आपका पार्ट पार्ट आता है 5 पार्ट 5 आपका जनरल आपका penalties and discipline and penalty और रूल नंबर 12 आपका डिसिप्लिन अथॉरिटी आ गया 30 है आपका 42 प्रोसीडिंग 42 इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग और 13 है आपका अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग और 13 है आपका अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग 42 इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग 42 इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग उन्हें आपकी अथॉरिटी 42 इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग 42 इंस्टीट्यूट 42 प्रोसीडिंग्स 30 तो हम बात करते हैं आपका पार्ट 1 की पार्ट 1 जनरल पार्ट 1 है आपका जनरल 3 रूल है आपके फर्स्ट है आपका टाइटल कमेंसमेंट सेंटर एप्लीकेशन पार्ट 2 है आपका क्लासिफिकेशन पोस्ट क्लासिफिकेशन then we have classification post and then जनरल क्या बोला था जनरल सेंट्रल पार्ट 3 आपका है पर आ गया आपका सस्पेंस पार्ट 4 आपका पूरा 5 पर आता है आपका 5 है आपका जो 7 है वो पेनल्टी 12 आपका आ जाएगा प्रोसीडिंग्स ठीक है 42 इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स ठीक है फिर आता है आपका पार्ट 6 पेनल्टीज पार्ट 6 फॉर ठीक है ये 14 नंबर पर आएगा प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज 14 नंबर पर नंबर है आपका रूल एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट एक्शन इंक्वायरी रिपोर्ट और फिर आपका प्रोसीजर फॉर माइनर नंबर है आपका प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज और ये है आपका 14 नंबर आपका प्लीज आपका एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट then we have 17 number आपका प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी रिपोर्ट आपका आता है आपका ऑर्डर्स कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स ठीक है 17 नंबर 3 नंबर पर आपका कॉमन प्रोसीडिंग्स हैव स्पेशल प्रोसीडिंग्स 19 नंबर पर है आपका स्पेशल प्रोसीडिंग 13 के 20 आपका रिगार्डिंग ऑफिसर्स सेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफ रोड प्रोसीडिंग 20 और 20 का मैच करता है आपस में रिगार्डिंग ऑफिसर्स सेंट टू स्टेट गवर्नमेंट ये है पर बोर्ड ठीक है
तो 17 नंबर आ गया आपका कम्युनिकेशन ऑर्डर्स, 18 पर आ गया आपका कॉम्प्लेक्स, 19 पर आ गया आपका स्पेशल सर्टेन केसेस, स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस। पहले बात करें आपका पार्ट वन के अंदर आता है आपका जनरल कंडीशन, उसके 3 आपके रूल्स हैं। आपका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, दूसरा आपका है क्या एप्लीकेशन, जो थर्ड नंबर पे है इंटरप्रेट एप्लीकेशन, टाइटल एंड कमेंसमेंट है नंबर पर, इंटरप्रिटेशन तीसरे नंबर पर एप्लीकेशन। आपका पार्ट 2 आता है क्लासिफिकेशन है, आपका रूल नंबर आपका क्लासिफिकेशन। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज, 5 है आपका क्लासिफिकेशन पोस्ट, 7 है आपका जनरल 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 सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। ये आपका आ गया आपका 7 तक, ठीक है। नंबर आपका पार्ट टू के अंदर आता है आपका ग्रुप और ग्रुप में अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप एंड पोस्ट, ठीक है, टू एंड पोस्ट आ गया आपका ये हैव 9 हो गया आपका ये। 10 पर है आपका पार्ट 4 में आता है 5, पार्ट 5 है आपका दैट इज एंड डिसिप्लिन, और इसके अंदर ही आपका 12 है आपका, आता है पेनल्टी, आता है एक मिनट, 10 पर पेनल्टी 11 पर आएगा, पेनल्टी 11 पर है। देन एक और पार्ट है जिसके अथॉरिटी टू, फिर आता है आपका 14 वाला जो अलग पार्ट है, पार्ट है आपका फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी, जो 14 है फॉर 15 का एक्शन रिपोर्ट है, एक्शन। देन वी हैव 6 आपका माइनर, फिर आ गया आपका 16 पर, 16 पर आ गया आपका माइनर पेनल्टीज, 17 पर आ गया आपका ऑफ ऑर्डर, ठीक है। देन वी हैव 18 पर आ गया आपका कॉमन प्रोसीडिंग्स, आ गया आपके पास कॉमन प्रोसीडिंग्स, 18 पर आ गया आपके पास कॉमन प्रोसीडिंग्स, पर आपका स्पेशल केसेस, स्पेशल प्रोसीडिंग, आ गया आपका प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर्स ऑफिसर्स सेंट या फिर लैंड टू स्टेट गवर्नमेंट। 21 आ गया आपका प्रोसेस रिगार्डिंग रिगार्डिंग ऑफिसर्स ब्रोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आपका आ गया हमारा जो है पार्ट कौन सा हो गया, पार्ट 6 जो है कंप्लीट, ठीक है। पार्ट 6 दोबारा से रिपीट करेंगे इसको एक बार। आपका पार्ट 1, पार्ट एक बार पार्ट 1 है आपका, पहले है आपका जनरल, जनरल के अंदर तीन आती है आपका टाइटल, कमेंट, शॉर्ट टाइटल है क्या, एंड कमेंट, तो ये शॉर्ट टाइटल एंड कमेंट। नंबर 2 आपका सेशन, नंबर आपका आपका एप्लीकेशन। पार्ट 2 के अंदर आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन, तो पार्ट 2 के अंदर हमारा रूल नंबर 4 5 6 आता है, 7 4 5 6 7, ठीक है। आता है क्लासिफिकेशन, देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल सर्विसेज, नंबर 7 नंबर आपका 5 है ये आपका, ठीक है, 4 5, ठीक है। नंबर 6 पर आता है आपका क्लासिफिकेशन पोस्ट, नंबर 7 पर आता है आपका जनरल जनरल सेंट्रल सेंट्रल सर्विसेज, हाँ जनरल सेंट्रल सर्विस, ठीक है। आता है आपका 7 नंबर पर। नंबर 8 से जो पार्ट स्टार्ट होता है आपका पार्ट 3 है, पार्ट 3 है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अपॉइंटिंग अब और अपॉइंटमेंट्स का जो 9 है अपॉइंटमेंट
ठीक है। और नंबर 4 आता है आपका पार्ट 4, रूल नंबर 10 है, आता है पार्ट 5, पार्ट 5 पर आता है आपका पेनल्टी, आपका रूल नंबर 11 पर पेनल्टी है, 12 पर पेनल्टी है, 13 पर है एक्शन टेकन, और नंबर 13 है आपका, और 11 पर हमारे पास रूल नंबर पेनल्टी है, रूल नंबर 12 पर आपका 13 पर रिपोर्ट, ठीक है। आता है आपका रूल है पेनल्टीज, आपका पार्ट है आपका 1, पार्ट नंबर पार्ट नंबर आपका ही, पार्ट नंबर आपका, पार्ट नंबर आपका फॉर स्टार्ट होता है आपका, दैट इज हाँ ये नंबर, फिर आता है आपका रूल नंबर 14 कहता है आपका, फिर आता है एक्शन, आता है आपका थोड़ा सा आई वुड लाइक टू चेक, अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसेस, नंबर 13 नंबर पर आपका अथॉरिटी टू अथॉरिटी का जो रूल नंबर होता है पेनल्टी बोलता है, ठीक है। फिर आपके पास आपका 11 आ गया, 12 आ गया दैट इज अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट पेनल्टीज, आपका था रूल नंबर 14 आता है आपका फिर पेनल्टीज, रूल नंबर 4 फिर एक्शन क्वेरी रिपोर्ट है आपका, आगे आपका फिर 18 पर आ गया आपका, पर आ गया कॉमन कॉमन, ठीक है। फिर 19 नंबर पर आ गया आपका स्पेशल स्पेशल प्रोसीजर इन केसेस, फिर 20 पर आ गया आपका और स्टार्टिंग ऑफिशियल लैंड टू शिट, 20 पर 20 आ गया आपका स्टार्टिंग ऑफिशियल शिट, ठीक है। आता है आपका क्या है आपका ऑर्डर्स अगेंस्ट विच नो अपील लाइज, और ऑर्डर्स अगेंस्ट लाइज, और इसमें अपीलेट अथॉरिटी है ऑफ लिमिटेशन फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ, एंड हमारे पास रूल नंबर 20 है आपका, सबसे पहले क्या आता है आपका अपील लाइज, ऑर्डर्स लाइज, दूसरा आता है आपका है ऑर्डर्स लाइज, आता है आपका अथॉरिटी कौन है, 4 नंबर का पीरियड, 25 बोलते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील, 26 आपका फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ अपील, 27 बोलता है आपका बोलता है आपका कंसिडरेशन ऑफ अपील, 28 बोलता है ऑर्डर्स इन अपील, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर इन 29 बोलता है आपका रिविजन, पहले यही करना है आपका इन अपील, पहले है ऑर्डर्स विच नो अपील लाइज, आता है 22 बोलता है ऑर्डर्स अगेंस्ट लाइज, 24 पर बोलता है आपका अपॉइंट अथॉरिटी, फिर 25 पर बोलता है आपका पीरियड ऑफ लिमिट, एंड 26 बोलता है आपका फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ,
लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील। 25 बोलता है एपीलेट अथॉरिटी, ऑर्डर अगेंस्ट राइट। पहले बोलता है पार्ट 7 आपका आता है अपील। पार्ट 7 क्या आता है? पार्ट 7 आता है आपका अपील। पार्ट 7 वाला पार्ट 8 आता है आपका रिवीजन और पार्ट 9 आता है मिसलेनियस। ठीक है, तो पार्ट 7 जो है आपका स्टार्ट होता है 22 से। 22 जो है आपका है ऑर्डर्स अगेंस्ट विच अपील। ठीक है, ऑर्डर पहले वाला है अगेंस्ट नो अपील लाइज। क्या बोलता है? ऑर्डर्स अगेंस्ट विच लाइज। 24 बोलता है आपका अपॉइंट एपीलेट अथॉरिटी। 25 बोलता है आपका 5 अथॉरिटी। फिर 25 हो आपका लिमिटेशंस। लिमिटेशन टाइम की जो लिमिटेशन पीरियड ऑफ लिमिट ऑफ का फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ। ठीक है, 7 हो गया आपका कंसीडरेशन का इम्प्लीमेंट ऑर्डर इन ऑर्डर इन। ठीक है, हमारे पास क्या रहा? सबसे पहले आते हैं हम आपका रूल नंबर 1 है आपका शॉर्ट शॉर्ट टाइटल एंड कमेंशन। आपका इंटरप्रिटेशन आपका 3 है आपका एप्लीकेशन, 4 है आपका क्लासिफिकेशन। देन रूल नंबर 5 है आपका सेंट्रल सेंट्रल सर्विसेज पोस्ट सर्विसेज। रूल नंबर 6 है आपका क्लासिफिकेशन पोस्ट। देन वी हैव रूल नंबर 7 दैट इज जनरल जनरल सेंट्रल सर्विसेज। वी हैव रूल नंबर appointing authority for group A, uh, appointing authority for other services and posts for or other appointing authority. ठीक है, मतलब for central services and other posts। यहाँ पर रूल नंबर 9 है। रूल नंबर 10 है आपका सस्पेंड। पार्ट 4 है आपका 5 है आपका 7 है आपका पेनल्टीज। आपका पार्ट आता है अथॉरिटी। और रूल नंबर 12 है आपका नंबर 12 है आपका डिसिप्लिन अथॉरिटी। फिर आता है आपका अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसेस। ठीक है, फिर आता है रूल नंबर 13 आपका 14 आपका प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज। एंड रूल नंबर 15 है आपका एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। रूल नंबर 16 आपका फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज। देन वी हैव रूल नंबर 17 का ऑर्डर। 18 है आपका 18 है आपका कॉमन प्रोसेस। रूल नंबर 20 है आपका ऑफिसर सेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। प्रोसीजर फॉर ऑफिसर सेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। 21 है आपका ऑफिसर्स सेंट बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। नंबर 20 है आपका आपका penalty। ठीक है, तो आपका पार्ट 5 के अंदर आता है पार्ट 6। पार्ट 6 के अंदर आता है आपका अपील। पार्ट पार्ट बताइए जरा एक बार कौन कौन से? नंबर 22 पर तो आप आ चुके हैं। नंबर 23 जो है ना आपका अपील है ना। रोल नंबर पार्ट जो आप कह रहे हैं पार्ट में मुझे थोड़ा डाउट है। पार्ट यहाँ 7 आना चाहिए। पार्ट 7 है अपील। 8 नंबर पर रिवीजन 9 पार्ट 7 आना चाहिए। तो पार्ट 6 क्या है? पार्ट 6 आपका फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। 5 क्या है? फिर वो पेनल्टीज एंड डिसिप्लिन। पार्ट 4 सस्पेंड। यहाँ पर बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर है आपका दैट इज ऑर्डर्स अगेंस्ट विच नो अपील लाइज। 24 है 2 है ये आपका 22 यस। 23 है आपका ऑर्डर अगेंस्ट विच लाइज। 4 है आपका अपीलेट अथॉरिटी। 25 है आपका 5 है आपका 5 पिटिशन ऑफ अपील। 26 है आपका फॉर्म फॉर्म और कंटेंट्स ऑफ। 7 है आपका 7 7 फॉर्म हो गया कंटेंट्स डाल दिया। फिर कंसिडरेशन ऑफ यस 27 कंसिडरेशन और 28 है फिर आपका इम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ अपील। ठीक है, ये आ गया आपका 25
5 था, 20 लिमिटेशन पीरियड 20 है आपका कंटेंट्स ऑफ अपील, 27 है आपका 28 ऑर्डर ऑर्डर से, ठीक है। देन 29 से शुरू होगा आपका रिविजन एंड रिव्यू। 29 जो है पूरा इस यही है, दैट इज, और 29 ए है इसका, 29 ए रिविजन, रिविजन रिव्यू है ना। तो रिविजन रहा आपका 29 और रिव्यू रहा 29। देन वी हैव रिव्यू आ गया, देन वी हैव मिसलेनियस, क्या था आपका, सर्विस ऑफ ऑर्डर, सर्विस ऑफ ऑर्डर्स, नोटिस, पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट एंड टू कंडोन डिले, मिसलेनियस आ रहा है इसमें, तो हो चुका है। 30 है आपका सर्विसेज ऑफ ऑर्डर्स, नोटिस, देख लेते हैं क्या है ये आप। प्री ऑर्डर नोटिस एंड अदर प्रोसेस, अब बाय रजिस्टर्ड, ये आपका सर्विसेज, अच्छा सर्विसेज ऑफ ऑर्डर और नोटिस, ठीक है, कर दिया, ठीक है। आपका पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट एंड डोंट डिले आपका ओमिट कर दिया गया है। 30 है आपका ट्रांजिट, 34 है आपका रिपीट, 35 है आपका रिमूवल ऑफ डाउट्स, 34 है आपका रिपील एंड, और 35 आपका रिमूवल ऑफ डाउट, 33 आपका ट्रांजिटरी, 32 है, और 31 है आपका पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट डोंट डिले, और फिर आता है आपका सर्विस ऑर्डर्स नोटिस। तो अगर हम बात करें इसको यहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है आपका रूल नंबर 1 है आपका शोर टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। रूल नंबर 2 है आपका नंबर 3 है आपका एप्लीकेशन, नंबर 4 है आपका, नंबर 4 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, नंबर 5 है आपका रूल नंबर 5 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, रूल नंबर 6 है आपका क्लासिफिकेशन, नंबर 7 है आपका जनरल जनरल सेंट्रल सर्विसेज, नंबर 8 है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप ऑफिसर्स, इसको हम ऐसे बोलते हैं अपीलेट अथॉरिटी है ना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप सर्विसेज, अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए, ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी का आपका लाइन है आपका अपॉइंटमेंट अदर्स टू अदर सर्विसेज, आपका 10 तो यही, 10 है आपका सस्पेंड पेनल्टीज, 12 है आपका डिसिप्लिन, नंबर प्रोसीडिंग्स, 14 है आपका प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज, नंबर आपका रिपोर्ट, रोल नंबर आपका फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज, नंबर 7 आपका क्या, वो ऑर्डर को कम्युनिकेट करने वाला बात था क्या, यस कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, ओके, क्या फिर आपका ऑर्डर, रूल नंबर 20 और 21 याद आ रहा है, 20 का ऑफिसर ऑफिसर्स एंड टू स्टेट गवर्नमेंट, ये 20 है आपका, फिर बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ये कम्युनिकेशन ऑर्डर्स है,
ऑर्डर करने के बाद आप क्या बाद क्या आएगा, इस कॉमन प्रोसीडिंग्स, कॉमन प्रोसीडिंग। उसके बाद जो दूसरा पक्ष आता है, ये आपका कॉमन प्रोसीडिंग्स। स्पेशल प्रोसीजर हो इन सर्टेन, इन सर्टेन आएगा, ठीक है। और आगे से कॉमन प्रोसीजर 19 स्पेशल प्रोसीजर इंसर्ट क्या हो, तो पर आप have वाला पार्ट आता है। तो अपील में था आपका रूल 20 और आपका अपील 25 में आपका पीरियड ऑफ लिमिट नंबर 26 आपका फॉर्म एंड कंटेंट 7 का कंसिडरेशन ऑफ 28 फिर है आप कंटेंट आपका फिर आता है 29 20 29 डिवीजन और ए है आपका रिव्यू इज 30 वाला क्या था, ये सबसे क्या था आपका, हाँ सर्विसेज ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ऑर्डर आता है आपका पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट और टू रिलैक्स टाइम लिमिट कॉन्डोन आपका omit किया आपका ट्रांजिट प्रोविजन 34 आपका रिव्यू एंड सेविंग और 35 पर आप तो आपका मिस्टेक क्या आता है, रूल है इसका रूल नंबर कहता है 35 तो है आपका रिमूवल ऑफ डाउट्स है ना, नंबर 30 रिपील एंड सेविंग और नंबर आपका ट्रांजिट ट्रांजिट हाँ और तो है आपका कॉन्डोन डिले एंड लिमिट हाउ टू नेक्स्ट 30 पर services of orders, notices, etc. Of notice, orders, etc. Orders, notice, etc. Services of orders, services of orders, notices, etc. ठीक है, आपका ये रूल नंबर 30 अपील होने के बाद जो है रिविजन एंड रिव्यू होने के बाद तो रिव्यू कर लिया आपने, उसके बाद उनको ऑर्डर नोट सर्व करवा दिया वहाँ पर, सर्व करवाने के बाद पर ये रहा आपका 30 और 31 में आपने डिले अगर है पावर टू टैक्स टाइम लिमिट्स एंड कंडोन डिले तो आपका ओमिट कर दिया। 33 आपका है आपका ट्रांजिट प्रोविजंस। 34 है आपका फील एंड सेविंग, फील एंड सेविंग, ठीक है। रिवीजन आ गया, रिपील नंबर कौन सा आएगा 34 पर है, रिपील एंड सेविंग। तो 35 नंबर का आपका रिमूवल ऑफ डाउट और 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो ग्रुप ए है सेंट्रल
और बी है एक्सेप्ट डिफेंस, और नंबर 5 पर आपका डाल दिया BCE डिफेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इंडेक्स जो है आपका CCS कंप्लीट हो। चलिए हम बात करेंगे इसका इंडेक्स है, जो रूल्स हैं पर हमारे हमें याद हो गए हैं। बात करते हैं टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं या फिर किस आएंगे, किस तरीके से करना है। यस, बात करते हैं यहाँ पर। पेपर हमने अपना ले लिया है, पेपर देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कुछ, क्या हम मेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सा जो वो है इससे रिलेट करता है। यस, तो पहले अगर हमें रूल्स याद है तो इसलिए हमने रूल्स पढ़े हैं, ये इसलिए हमने इसका रूल्स पढ़े हैं ताकि हमें पता हो। ठीक है, फर्स्ट वाला जो LTC है, ओके 119 जो क्वेश्चन है अगेन LTC, 118 को तो पहले DFPR बोल रखा है इन्होंने। देन वी 117 रिलैक्स और DFPR बोल ही रखा है आपने। यहाँ पर बोलता है आपका अगेन DFPR ऑब्जेक्ट हेड जो है DFPR के अंदर है आपका, राइट, DFPR के अंदर में है। देन वी हैव रिवाइवल ऑफ पोस्ट देन फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ डीम्ड अबॉलिश्ड, फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ डीम्ड अबॉलिश्ड, जो भी हो गई उसके लिए कौन करेगा। ठीक है, अगेन DFPR है आपका। ठीक है, देन वी हैव अथॉरिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रिवीजन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड रिवाइवल ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये भी आपका DFPR है। देन वी हैव एक्सपेंडिचर कंटिजेंट, ये सब आपका DFPR में आता है आपका। देन ये भी DFPR लिख रखा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका असाइनमेंट ऑफ फंड्स इंक्लूड प्राइमरी ऑफ अप्रोप्रिएशन टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर अप्रोप्रिएशन। ओके, DFPR GFR दोनों में ही दे रखा है आपका। देन वी हैव मेन डिमांड फॉर ग्रांट। देन वी हैव ट्रांसफर ऑफ लैंड। ओके, ये आपका GFR का है, ये भी GFR का ही है। फिर आपका मेन डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट तो आपका ये DFPR है आपका। DFR से यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका। है क्वेश्चन भी नहीं देखेंगे क्योंकि हम अभी सिर्फ CCS पे फोकस करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल रूल्स 17, अगर हमें ईजी रहता है तो इंस्टेड ऑफ मिनट ऑफ अप्रोप्रिएशन आ गया हमारे पास, GFR का रूल्स आ गया हमारे पास, GFR ही चल रहा है। देन वी हैव GFR GFR, then we have GFR again, then user charges. Okay, GFR कर रहा है आपका एनुअल अकाउंट, GFR कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट मनी, GFR हम क्वेश्चन नंबर 94 पर पहुंच चुके हैं और अब तक ये GFR ही चल रहा है आपका। देन वी हैव कंसल्टिंग सर्विसेज, GFR सेकेंडरी यूजर्स, GFR स्पेशल कैजुअल लीव, लीव एनकैशमेंट, स्टडी लीव। ओके, देन वी हैव रिल मैक्सिमम HPL CCS, क्वेश्चन नंबर 85 आता है आपका सीधा अगर आप चले ना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि एक बार क्या है। दैट इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस कंटेन इन द CCS क्लासिफिकेशन रूल्स एंड अपील, द पीरियड फॉर लिमिटेशन अपील फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज डिलीवर्ड टू द एप्लीकेंट, कितने दिन में कर सकता है CCS रूल के अंदर। और यहाँ पर बात हो रही है जब आपको अपील करना होता है, 90 डेज है इसका, बात आती है तो 90 डेज है। अब यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर दैट इज अपील पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू अपील। देखिए यू का भी दे रखा है आपको, दैट इज नो अपील प्रेफर्ड अंडर दिस पार्ट shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of 45 days from the date on which the order of copy of the order appeal against is delivered to the applicant, provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring period of limitation of
ओके, हम 90 डेज जो सोच रहे थे वो एकदम एकदम ही गलत है। आंसर है इसका 45 डेज। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज रूल नंबर 25 है आपका। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे, थोड़ा आइडिया हमें हमें मिलता रहेगा, क्योंकि हमें लगता है हमें आ गया, लेकिन जो क्वेश्चंस जो होते हैं ना, थोड़ा सा हटके या थोड़ा इस तरीके से होते हैं। इसको हम क्या है, अपना जो रूल नंबर 25 है पर देख लेते हैं क्या है आपका। ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द सीसीएस जो अपील रूल्स 1965, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू अपील फ्रॉम द डेट, the period of from date on which a copy of the order appealed, of the copy of the order appealed against, delivered to the appellant. The period of limitation to appeal, the period of limitation to appeal from the date on which a copy of the order appealed against, जिसका आपने आगे अगेंस्ट किया है, is delivered to the applicant. यहाँ पर ये आपका है, that is no appeal preferred under this part, okay, shall be entertained unless such appeal is preferred within 45 days. तो ये 45 days है आपका, एग्जाम के अंदर आ रखा है आपका, 2018 के एग्जाम में आ रखा है आपका 45 डेज इसका आंसर है। जो भी आप जो है अपील करना चाहते हैं ना इस तरीके से सीसीएस के अंदर, विद इन 45 डेज करना है आपको, फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज डिलीवर टू द एप्लीकेंट। ठीक है, जब भी आपको ऑर्डर मिला जिसके अगेंस्ट आपने अपील करनी है, ठीक है, प्रोवाइड दैट अपीलेट अथॉरिटी जो है आपकी इसमें, ठीक है, जो भी अपीलेट अथॉरिटी है, मे एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सर्टिफिकेट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट सर्व्स इन कोर्स फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील इन टाइम। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका, वेयर अ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पर हमने, और जब हम बात करें ना फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ अपील, तो अपनी shall do so separately and in his own name. Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name. सेपरेटली करना है और उसको अपने नाम पे करना है। द अपील शेल बी प्रेजेंटेड अथॉरिटी टू होम द अपील। आई थिंक हम क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, उसके बाद हम एक बार इसको रूल्स को रीड कर लेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। दूसरा आपका, वेयर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, आर इनिशिएटेड ओके अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड, तो कहता है आपका, रुकिएगा, देन वी हैव, ठीक है, तो हम बात करते हैं सी सी की। वेयर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड, ठीक है, अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वेयर, ये हम जो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये 84 क्वेश्चन है, ये दिस इज वेयर अ डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वेयर आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द department proceedings it is found that some blame attaches to the officer, which of the following penalties should be at least imposed to the delinquent, तो बोलता है फाउंड दैट सम ब्लेम अटैचेस टू द ऑफिसर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टी शुड बी एट लीस्ट इम्पोज ऑन द डेलिंक्वेंट, तो कम से कम आपको जो है उनको क्या देना है, ओरल वार्निंग, रिटर्न वार्निंग, नोटिफिकेशन, विद होल्ड ऑफिस इंक्रीमेंट, कम से कम जो है ना, मेजर पेनल्टीज याद है आपको? हाँ, इंश्योर में था ना, और मेजर पार्ट था, याद है? भूल गए? कोई बात नहीं, रूल नंबर 14 पर चले जाइए आपको, तो 14 के अंदर था ना आपका जो, हाँ जी, रूल नंबर 14 पर आ गए आप, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज है, ठीक है, तो पेनल्टीज तो नंबर 11 है आपका, पेनल्टीज पर आ गए। सेंश्योर तो आपका माइनर पेनल्टी है, ओके, आंसर इसका सेंश्योर ही है, दैट आई एम श्योर अबाउट इट। यहाँ पर ना हमने पढ़ा था ये कब और आपको देना है,
हम ये भूल गए थे, इसको याद करना कि सेंश्योर जो है एक माइनर पेनल्टी है, ठीक है। फॉलोइंग पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड। सेंश्योर पेनल्टीज में आ गया कि शुड एटलीस्ट बी। सेंश्योर तो आना चाहिए। उससे तो मैंने पढ़ा है कि जहाँ पर भी अगर डिपार्टमेंट तो उनको जो है कम से कम जो है आपने सेंश्योर देना है ना, सेंश्योर देना है, राइट। दिस आई वुड लाइक टू रीड दिस, कहीं ना कहीं ये है हमारा आपका। अरे इस तरीके से मिलना मतलब मुश्किल हो रहा है, बट आंसर वी नो कि आंसर, लेकिन हम इसमें इसको जस्ट ढूंढना चाह रहा हूँ कि एनल है कहाँ पर, कहाँ होना चाहिए। पेनल्टी पर ही होना चाहिए ना, पेनल्टी वाला जो जो क्लॉज है 11 नंबर उसी पर होना चाहिए, और कहाँ होगा। 11 वाला पढ़ लीजिए एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा इसका, है ना। ये बात भी है कि जीआईडीज पढ़ लीजिए एक बार, या तो डिपार्टमेंट। फिर मिल जाएगा, सेंश्योर इज अ फॉर्मल इम्प्लीमेंट, कर दी, ठीक है। ये आ गया ना, एटलीस्ट सेंश्योर टू बी अवॉइड इफ एन ऑफिशियल इज टू बी प्राइज, ठीक है, ये आ गया आपका। ये क्वेश्चन है आपका, वेयर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग आर इनिशिएटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आफ्टर कंप्लीट डिपार्टमेंट फाउंड सम ब्लेम मटेरियल, है ना।
ऑफिसर आ गया आपका, that some blame attaches to the officer, then the penalty of censure at least should be imposed. Okay? ये आ गया आपका, ये याद कर लीजिएगा इसको, censure to be awarded, official to be penalized. ठीक है, एग्जाम के अंदर आया है। कम से कम आपको सेंश्योर देना है। और पेनल्टीज अगर आप इसको चाहें तो एक बार याद कर सकते हैं, पेनल्टीज क्या क्या है आपकी। नंबर 11 वी वुड लाइक टू रीड, यहाँ पर जो नंबर 11 है कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, द फॉलोइंग पेनल्टीज मे फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजन एज हियर आफ्टर प्रोवाइडेड बी इम्पोज ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, नेमली माइनर पेनल्टीज कितनी होती है आपके पास और मेजर पेनल्टीज कितनी होती है वो बताइए आप सबसे पहले। याद किए टाइप टाइम हो गया है, बट आई वुड लाइक टू रिकॉल। सबसे पहले था माइनर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी है सबसे जो छोटी, दैट इज सेंश्योर, माइनर पेनल्टी है, ठीक है। ओके, देन वी हैव और है माइनर पेनल्टी, बताइए कौन कौन सी है आपके पास माइनर पेनल्टी और कितनी है। ओके, एक 5 है और एक 4 है शायद। मेजर पेनल्टी की बात करूं तो 4 है और माइनर पेनल्टी 5 है शायद, तो गलत जवाब है। माइनर पेनल्टी जो है ना वो 4 है। माइनर है ना यार, तो इस तरीके से याद कीजिए, माइनर मतलब छोटा, तो वो 4 है, पेनल्टी 5। ठीक है, पहली चीज हो गया आपका बात। अ, हाँ, भूल गए इसको आप, है ना, कर पाए ना। तो सबसे पहले आपका सेंश्योर, दैट्स अ फॉर्मल पनिशमेंट, एसीआर के अंदर रिकॉर्ड होगी आपकी, ठीक है। विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, विदहोल्डिंग हिज प्रमोशन इज ऑल्सो अ माइनर पेनल्टी। तो सबसे पहले आता है आपका सेंश्योर, उसके बाद आपका विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, विदहोल्डिंग ऑफ पे, विदहोल्डिंग ऑफ और ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, विदहोल्डिंग ऑफ पे आ गया आपका और विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन आ गया। सेकंड नंबर पर आता है आपका रिकवरी, रिकवरी फ्रॉम हिज पे टू द होल पार्ट और एनी पेक्यूनियरी लॉस कॉज्ड टू हिम टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स। तो बोलता है रिडक्शन, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज, रिकवरी कर लीजिए फिर, या फिर रिडक्शन, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज of for a period not exceeding 3 years without cumulative effect and not adversely affecting his pension, 3 साल के लिए, not exceeding 3 years। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, दैट इज सेंश्योर। सबसे पहले आता है आपका सेंश्योर, फिर आता है आपका विदहोल्डिंग हिज प्रमोशन, फिर आता है आपका विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, फिर आता है रिकवरी, रिकवरी फ्रॉम हिज पे द होल पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉस कॉज्ड टू हिम, द होल और पार्ट ऑफ द लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर। ठीक है, मतलब आपने केयर नहीं किया और ब्रीच ऑफ ऑर्डर या फिर आपने ऑर्डर्स नहीं माने, तो इसमें जो है रिकवरी फ्रॉम हिज पे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका सेंश्योर, आपने वैसे एक फॉर्मल जो है लिख के दे दिया इसको, सेंश्योर उनकी एसीआर में डाल दिया, तो सेंश्योर आ गया आपके पास, वो आपकी एक माइनर पेनल्टी हुआ। देन यू हैव विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, विदहोल्डिंग ऑफ हिज पे, विदहोल्डिंग हिज प्रमोशन, फिर उसमें आपने रिकवरी कर लिया, तो रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ होल पार्ट, होल और पार्ट ऑफ द पेक्यूनियरी लॉस कॉस्ट टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर। ठीक है, रिकवरी हो गया। और दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे। ठीक है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज, बाय वन स्टेज कह रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज, रिडक्शन किया लोअर स्टेज में द टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही स्टेज डाउन करना पड़ेगा, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट करना पड़ेगा, एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन, पेंशन को अफेक्ट ना कर रहा हो। ठीक है, तो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रिकवरी, रिडक्शन, विद होल्डिंग, ठीक है, और सेंश्योर। ठीक है, सबसे पहले आपका जो है 5 नहीं 4 पेनल्टी होती है, ठीक है, माइनर पेनल्टी 4 है, देन मेजर पेनल्टी आपकी 5 है, टोटल 9 पेनल्टीज है, राइट। हमारे पास जो है ना, देखिए ये देख तो दे तो रखा है इसके अंदर, टोटल 9 पेनल्टी है, तो ये इस तरीके से है, ठीक है? तो सेंश्योर, सबसे पहले सेंश्योर नंबर पर आता है आपका विदहोल्डिंग ऑफ, विदहोल्डिंग ऑफ पे, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन को भी विदहोल्ड करना जो है आपका
क्या है आपका, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, विदहोल्डिंग ऑफ पे, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, और या फिर रिकवरी ऑफ होल और पार्ट ऑफ द पेक्यूनियरी लॉस कॉस्ट टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर। तो वो पूरा कर सकते हैं, रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ पेक्यूनियरी लॉस कॉस्ट बाय हिम टू द गवर्नमेंट, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। देन आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है आपका रिकवरी कर लिया आपने, रिकवरी कर लिया, फिर आपने रिडक्शन कर सकते हैं आप, क्या कहता है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे, रिडक्शन इन द लोअर स्टेज to the reduction to the lower stage in the time scale of pay by one stage, एक स्टेज नीचे कर दिया, for a period not exceeding 3 years, ठीक है, without cumulative effect and not adversely affecting his pension, without cumulative effect and not adversely affecting his pension, ठीक है। तो reduction to a lower stage in the time scale of pay by one stage for a period not exceeding 3 years without cumulative effect and not adversely affecting his pay, ठीक है। Reduction to a lower stage in the time scale of pay by one stage for a period not exceeding 3 years without cumulative effect and not adversely affecting his pay, ठीक है। एटलीस्ट सेंश्योर टू बी अवॉर्डेड, जैसे हमने याद ही किया इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये पेनल्टी आ गई आपका, जो माइनर पेनल्टी है वो आपकी 4 है, मेजर पेनल्टी 5 है। तो फर्स्ट है आपका विदहोल्डिंग ऑफ पे, पहले आपका विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, पहले सेंश्योर है यार, सबसे पहले सेंश्योर जो कि आपको देना ही है, ठीक है। ये बोलता है सबसे पहले सेंश्योर है, दूसरा आपका विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, फिर आता है विदहोल्डिंग ऑफ पे, फिर आता है आपका रिकवरी ऑफ एनी पिक्योनियरी लॉसेस कॉज्ड टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर, फिर आता है रिकवरी कर लिया आपने, फिर उसके बाद उसको रिडक्शन इन द लोअर स्टेज ऑफ पे, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज ऑफ पे बाय वन स्टेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय वन स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years without cumulative effect and without affecting pension and not adversely affecting his pension or without cumulative effect, ठीक है। ये आपकी माइनर पेनल्टी रही। मेजर पेनल्टी की बात करें तो आपको पता ही है, आपको एक तो रिमूवल होता है, एक डिसमिस होता है। रिमूवल के अंदर क्या होता है कि आप दूसरी जगह सर्विस ले सकते हैं, डिसमिसल में आप दूसरी जगह सर्विस नहीं ले सकते हैं। तो रिमूवल हो गया, डिसमिसल हो गया, जहाँ क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाए, एक तो ये हो गया 3। और चलिए बात करते हैं, बोलता है सेव एज, मतलब जैसे कि ए के अंदर बता रखा है, रिडक्शन जो है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज है in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether the government servant will earn increment of pay during the period of such reduction and whether on expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future improvements of his pay। तो पहले ये आएगा आपका, देखिए जैसे रिडक्शन था ना आपका, तो रिडक्शन यहाँ पर टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे था यहाँ पर। तो ये कहता है कि सेव एज प्रोवाइडेड फॉर क्लोज 3A, रिडक्शन रिडक्शन जो है अगर आप लोअर स्टेज में कर देते हैं, टू अ लोअर स्टेज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, फॉर स्पेसिफाइड, किसी यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा नहीं हो, यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड पीरियड करते हैं, मान लो 1 साल के लिए करते हैं, लेकिन विद फर्दर डायरेक्शन देते हैं उसके अंदर, एज टू वेदर और नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल इंक्रीमेंट ऑफ पे, विल अर्न इंक्रीमेंट ऑफ पे ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंक्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ एक रिडक्शन था बस, करके रिडक्शन कर दिया, मान लीजिए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर वन स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, ठीक है, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं आएगा उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आया आपका, फर्दर डायरेक्शन दे दिया आपने कि ही विल अर्न इंक्रीमेंट्स ऑफ पे ड्यूरिंग द पीरियड, और एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड के बाद मिलेंगे नहीं, और रिडक्शन विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ पे, ठीक है। जहाँ ये इस तरीके से आता है आपका, तो इससे आपका मेजर पेनल्टी बनती है। तो रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज ऑफ पे in the time scale of pay for a specified period with further directions, then he will earn increment of pay during that period or not of reduction, ठीक है। और या फिर उसके बाद एक्सपायरी ऑफ पीरियड के बाद, ठीक है, विल अर्न इंक्रीमेंट या नहीं, इंक्रीमेंट जो है अर्न करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड या फिर ड्यूरिंग द पीरियड। रिडक्शन विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर, रिडक्शन का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो जो फ्यूचर इंक्रीमेंट्स है उनको पोस्टपोन कर देंगे, पोस्टपोन द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स कर सकते हैं वो इस तरीके से, कैन दे पोस्टपोन द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स, देखेंगे।
ठीक है। ओके। तो हम बात कर रहे थे इसके अंदर ये आगे आपका मेजर पेनल्टीज के अंदर की जो रिडक्शन ऑफ पे है, अगर इसके अंदर आप स्पेसिफाइड पीरियड के लिए करते हो और इसमें अंदर बताता है कि इस पीरियड के दौरान इनके इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आफ्टर इसका जितने जिस पीरियड के बाद जो है इस पर रिडक्शन ऑफ पे में कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो है या तो इनकी जो फ्यूचर की जो इंक्रीमेंट है उसको पोस्टपोन कर देंगे किस तरीके, तो मेजर पेनल्टी है। दूसरा है आपका रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे के साथ साथ में क्या है आपका रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल टू लोअर स्टेज था वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर क्या था, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे, और दूसरे वाले में आता है रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज नहीं है। अब यहाँ पर आ गया लोअर स्टेज इन टाइम स्केल था ना, यहाँ पर एक स्टेज की बात होती है, यहाँ पर आ गया सीधा टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस for a period to be specified in this shall be a bar to the promotion of the government servant during such specified period to the time scale of pay, ठीक है, for which he was reduced with the direction as to whether he was not on promotion on expiry of the said period specified। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। दूसरा जो बोलता है रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, लोअर टाइम स्केल, लोअर स्टेज नहीं है यहाँ पर, लोअर स्टेज था वहाँ पर ना, लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, यहाँ पर क्या है, रिडक्शन टू अ टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड या पोस्ट फॉर अ पीरियड टू बी इन द ऑर्डर विद पेनल्टी विच शैल बी अ बार, अगर इस तरीके से करता है या फिर कोई भी है, विच शैल बी अ बार टू द प्रमोशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सच स्पेसिफाइड पीरियड, आपने उस पीरियड के लिए बार लगा दिया, इसमें कोई प्रमोशन नहीं होगी, ठीक है, बार टू द प्रमोशन, ठीक है। टू द टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस फ्रॉम विच ही वॉज रिड्यूस्ड, ठीक है, विद द डायरेक्शन एज टू वेदर और नॉट ऑन प्रमोशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द साइड पीरियड स्पेसिफाइड पीरियड, द पीरियड ऑफ रिडक्शन ऑफ द टाइम स्केल ऑफ पे पोस्ट शेल ऑपरेट टू पोस्टपोन फ्यूचर, अगर वो फ्यूचर पोस्टपोन कर देगा फ्यूचर इंक्रीमेंट्स को, ठीक है, टू वॉट एक्सटेंट द गवर्नमेंट शेल रीगेन, या फिर वो जो है अपना रीगेन करेंगे नहीं अपनी ओरिजिनल सीनियोरिटी इन द हायर टाइम स्केल ऑफ पे, तो ये सब कुछ जो है ये आपका माइनर मेजर पेनल्टी के अंदर आएगा, ठीक है, हायर टाइम स्केल ऑफ पे या ग्रेड के अंदर या इस तरीके से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देन वी हैव कंपल्सरी रिटायरमेंट, फिर आता है रिमूवल, रिमूवल क्या है, शैल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट, इसमें से लिखा है शैल डिस्क्वालीफाई फॉर द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट लिखा है, ठीक है। तो बोलता है प्रोवाइडेड दैट इन एवरी केस इन विच द चार्ज ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इन एवरी केस, किसी भी केस में अगर चार्ज ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट्स और डिसप्रोपोर्शनल टू नोन सोर्स ऑफ इनकम और द एक्सेप्ट चार्ज ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम एनी पर्सन और ऑफ एनी ग्रेटिफिकेशन, ये एसेट्स का पोजीशन ऑफ एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है, फ्रॉम टू द नॉन सोर्स और एनी ग्रेटिफिकेशन, मतलब करप्शन का एक तरीके से बात हो गया, अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन एज अ मोटिव और रिवॉर्ड फॉर डूइंग फॉर बियरिंग टू डू ऑफिशियल, अगर ऐसा इस्टेब्लिश हो जाता है उस केस में आपको सिर्फ रिमूवल और डिसमिस ही करना है, बस सिर्फ रिमूवल और डिसमिस ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोवाइड फर्दर दैट इन एन एक्सेप्शनल केस एंड फॉर स्पेशल रीजन रिकॉर्डिंग अदर पेनल्टी में भी, लेकिन बहुत ही एक्सेप्शनल केस में अगर आप कुछ जो है अदर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हो, अदरवाइज आपको यही आपको रिमूवल और डिसमिस ही करना है, ठीक है। बोलता है द फॉलोइंग शेल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है चीज़ें पेनल्टी नहीं करेगी। क्या? विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, अगर आप विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट रोक लिया आपका, ठीक है, ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर इज फेलियर, कब? फॉर इज फेलियर टू पास एन डिपार्टमेंटल एग्जाम, आपसे डिपार्टमेंटल एग्जाम पास नहीं हुआ और आपका इंक्रीमेंट रोक लिया गया, ठीक है, फेलियर पास एनी डिपार्टमेंटल एग्जाम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस केस में क्या होगा? इट विल नॉट अमाउंट टू अ पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ गवर्निंग सर्विस टू विच ही बिलोंग्स और पोस्ट विच ही होल्ड्स और टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है। दूसरा आपका स्टॉपेज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार इन द टाइम स्केल ऑफ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज अनफिटनेस टू क्रॉस द बार, अगर किसी गवर्नमेंट का स्टॉपेज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार, ठीक है, इन द टाइम स्केल ऑफ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ अनफिटनेस टू क्रॉस द बार, अगर ठीक है, अगर अनफिटनेस टू क्रॉस द बार, ठीक है, किसी गवर्नमेंट को रोक लिया एट द एफिशिएंसी बार, ठीक है, कि भाई एफिशिएंसी की वजह से जो है एफिशिएंसी बार पर रोक लिया गया तो वो पेनल्टी नहीं है। नोट नॉन प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट वेयर इट इज सब्सटेंशियल और ऑफिशियल कैपेसिटी आफ्टर कंसिडरिंग केस फॉर द प्रमोशन टू विच ही इज एलिजिबल, ठीक है। नॉन नॉन प्रमोशन, अगर किसी को प्रमोशन नहीं दिया, मान लीजिए नॉन प्रमोशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर इन सब्सटेंटिव और ऑफिशियल कैपेसिटी, तो नॉन प्रमोशन भी जो है, ठीक है, देखिए प्रमोशन ना देना, विद होल्डिंग इज प्रमोशन हो गया है, तो government servant whether in after considering yes to a service grade or post for promotion to which he is eligible, non promotion of government servant whether in a substantive, नॉन प्रमोशन की बात हो रही है, विद होल्डिंग की बात नहीं कर रही है, नॉन प्रमोशन है, ठीक है, नॉन प्रमोशन में विद होल्डिंग की बात नहीं है, विद होल्डिंग नहीं है, नॉन प्रमोशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर इन सब्सटेंटिव और ऑफिशियल कैपेसिटी, नॉन प्रमोशन की बात हो रही है कि किसी को प्रमोट ना किया आफ्टर कंसिडरिंग के सर्विस ग्रेड ऑफ पोस्ट फॉर टू विच ही इज एलिजिबल, ठीक है। विद होल्डिंग इज प्रमोशन नहीं कर रहा, विद होल्ड नहीं कर रहा, बस नॉन प्रमोशन बोल रहा है, ठीक है, बात वही है, ये पेनल्टी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। रिवर्जन, रिवर्जन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएटिंग इन अ हायर सर्विस, उसको कोई बंदा जो है उसको रिवर्जन कर दिया, ठीक है, ऑफिशिएटिंग हायर सर्विस ग्रेड और पोस्ट टू अ लोअर सर्विस ग्रेड और पोस्ट ऑन द ग्राउंड दैट ही इज कंसिडर्ड टू बी अनसूटेबल, अगर इसको अनसूटेबल मानते हैं फॉर सच हायर पोस्ट ग्रेड सर्विस और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे एंड दैट इज नॉट कनेक्टेड विद दिस कंडक्ट, ठीक है, अगर उसको रिवर्स कर दिया आपने तो भी वो जो है आपकी पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। रिवर्जन ऑफ अ ग्राउंड, गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन, अगर कोई बंदा अपॉइंटेड प्रमोशन प्रोबेशन पे है टू एनी अदर सर्विस ऑन प्रोबेशन ऑन टू एनी अदर सर्विस ग्रेड और पोस्ट टू हिज परमानेंट सर्विसेज ग्रेड और पोस्ट ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, द रिवर्जन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन probation any other service grade or post to his permanent service, any other service grade or post to his grade or post during or at the end of the terms to his permanent service during at the end of the period of probation in accordance with the appointment rules, ठीक है। रिप्लेसमेंट कर दिया आपने, रिप्लेसमेंट ऑफ सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हुज सर्विस हैव बीन बोरोड फ्रॉम, रिप्लेसमेंट तो कोई बात नहीं है, रिप्लेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सर्विस बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और any authority under the constitution with retirement, compulsory retirement, accordance with the international, compulsory retirement कब है? Accordance with the provisions relating to his superannuation retirement provisions
सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट, ठीक है। इसमें भी जो है ये दिस विल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी। क्या क्या है तो आपका, अगर आपका इंक्रीमेंट विदहोल्ड कर लिया, ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए डिपार्टमेंटल एग्जाम कोई पास नहीं होता है, जिसकी वजह से किसी को अगर जो है विदहोल्ड कर देते हैं इंक्रीमेंट, तो उस केस में इंक्रीमेंट जो है विदहोल्ड कर लिया जाएगा सबसे पहली बात, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिस्ट है यार, याद कर लीजिए, आपका इंक्रीमेंट भी विदहोल्ड कर सकते हैं इन केस ऑफ फेलियर टू पास एनी डिपार्टमेंटल एग्जाम करते, तो ये पेनल्टी नहीं है। स्टॉपेज एट दी एफिशिएंसी बार पर स्टॉप कर लिया, पेनल्टी नहीं है। नॉन प्रमोशन, यहाँ पर नॉन प्रमोशन लिखा हुआ है, ठीक है, विद होल्डिंग नहीं है, विद होल्ड प्रमोशन, ठीक है। ये क्या है आपका नॉन प्रमोशन, प्रमोशन नहीं दिया आपने किसी गवर्नमेंट सर्व को कि वेदर इन सब्सटेंटिव और ऑफिशियल कैपेसिटी आफ्टर कंसीडरिंग हिज केस, ठीक है, टू अ सर्विस ग्रेड और पोस्ट और प्रमोशन टू विच ही इज एलिजिबल, इसके लिए एलिजिबल था, तो नॉन प्रमोशन की बात आ रहा है। तो नॉन प्रमोशन में क्या है आपका, नॉन प्रमोशन के दिस विल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी। रिवर्जन कर दिया आपने किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो कि हायर उसमें था, तो लोअर सर्विस में डाल दिया। देखिए विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, आप इंक्रीमेंट होल्ड कर रहे हैं आपका, किसकी वजह से, एक्सेप्ट फेलियर टू एग्जामिनेशन, ठीक है, एफिशिएंसी बार पर स्टॉप कर लिया, ठीक है, टाइम स्केल ऑफ पे में, हाँ ठीक है, नॉन प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट सब्सटेंटिव और कैपेसिटी में प्रमोशन भी कर लिया आपने, नॉन प्रमोशन कर दिया, आफ्टर प्रमोशन ऑफ, आफ्टर कंसिडरेशन सिचुएशन, ठीक है, रिवर्जन कर दिया आपने, रिवर्जन ऑफ अ गवर्नमेंट, रिवर्जन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशियल हायर सर्विस टू लोअर सर्विस ग्रेड और पोस्ट कंसिडर अनसुटेबल ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर रिवर्जन, तो उस केस में भी आपको दैट्स नॉट अ पेनल्टी। और रिवर्जन प्रोबेशन पे है तो भी नहीं, और रिप्लेसमेंट टू ऑफ द सर्विसेज बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, रिप्लेसमेंट कर दिया कोई बात नहीं, कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया रिलेटिंग टू सुपरनेशन और रिटायरमेंट, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन ड्यूरिंग एंड ऑफ पीरियड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ओके, टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई, ठीक है, एम्प्लॉयड अंडर एन एग्रीमेंट, ठीक है, एनी कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कंप्लेंट कमिटी, कोई भी कंप्लेंट कमिटी ने कुछ भी recommendation of complaint committee referred in this and established in the department government inquiry in complaint of sexual harassment केस में, ठीक है, compensation, कोई भी compensation award किया गया of the in the complaint of sexual harassment केस के अंदर without the meaning of, without the meaning of rule 3 से कुछ 3C, within the meaning of rule 3, ठीक है, ये आ गया आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अंदर आपने रेफर करना है GID 7 एग्जाम के अंदर एटलीस्ट सेंश्योर को है आपको अवॉर्ड करना है, फिर कोई भी ऑफिसर को आपको पेनलाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया और हमने इसका बेसिक्स, ठीक है, सेंश्योर आपको कम से कम देना है, सेंश्योर जो है एक आपकी माइनर पेनल्टी बोलते हैं। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द CCS क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल रूल अपील रूल्स, which of the following shall be the inquiry report contain after conclusion of the inquiry in terms of the provisions contained in the CCS, okay, which of the following shall the inquiry report contain, inquiry report के अंदर क्या क्या होना चाहिए, the articles of charge and the statement of conduct or misbehavior, article of charge चाहिए and the statement of imputations, हाँ जी, of misconduct और misbehavior, आर्टिकल ऑफ चार्ज, क्या क्या इसके चार्जेस हैं, आर्टिकल ऑफ चार्ज, ठीक है, आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस ऑफ कंडक्ट और मिसबिहेवियर, द डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच थिंग, एन असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग्स ऑन आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड रीजन, बोल रहा है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन, आफ्टर कंक्लूजन कह रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कंक्लूजन बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये तो यस कट होना चाहिए, डिफेंस होना चाहिए, असेसमेंट ऑफ द एविडेंस होनी, ठीक है, द फाइंडिंग होनी, 1 2 3 4 ये आंसर है इसका, ठीक है। इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में कर लेते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट,
ये हमारा शायद 15 में ही हमें मिल जाएगा कि इंक्वायरी रिपोर्ट पे क्या एक्शन लेना है। तो मिल सकता है आपके हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी फॉलोइंग शैल द इंक्वायरी रिपोर्ट कंटेन। इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? प्राउड डिसीजन मिलना चाहिए। पेज नंबर देख लेते हैं हम एक बार, इसमें अंदर क्या क्या है एक्शन इंक्वायरी रिपोर्ट। ठीक है, तो हम चल लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर ये यहाँ आपका मतलब द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इफ इट इज नॉट इटसेल्फ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, अगर अगर वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी नहीं है, then may for reasons to be reported by writing remit the case inquiring authority further inquiry and report and inquiry, and the inquiring authority shall thereupon proceed for the further inquiry according to the provisions of rule 14 as far as may be। मतलब अगर मान लीजिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है एफ नॉन, अगर वो खुद से इंक्वायरिंग अथॉरिटी नहीं है और अगर अपनी तरफ से रीजन रिकॉर्ड लिखे थे कि भाई जो इस केस को रिमिट कर दिया जाए, मतलब तो बाद से कंसिडर किया जाए या फिर इस तरीके से रिमिट मीनिंग छोड़ना, रिमिट ओके, रिमिट कर दे मतलब टू सेंड मनी ओके, टू कैंसिल समबडीज डेट ओके, रिमिट सेंड बैक। तो ये कहता है यहाँ पर ओके, वी जस्ट बैक टू दिस। रूल नंबर 15 है हमारा ये। यस, सबसे पहले क्या कहते हैं रिमिट, रिमिट का मतलब होता है बैक, बट में सेंड बैक ओके। और कैन डू वो वापस से जाए, अगर वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी नहीं है तो रीजन अपने तरफ से रिकॉर्ड किया तो दे कैन सेंड बैक टू दी फर्दर इंक्वायरी के लिए भेज सकते हैं इंक्वायरी। द डिसीजन अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड और कॉज टू बी फॉरवर्डेड copy of the report of the inquiry if any held by the disciplinary authority, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority together with its own tentative reasons for disagreement if any with the findings of the inquiring authority or any to the government servant who shall be required to submit if he so desires a written representation। disciplinary authority चाहे तो shall forward करेंगे इसको ओके, he shall forward और कॉज टू बी फॉरवर्डेड अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट दी है उसको भेजेंगे। इफ एनी हेल्ड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज नॉट इन द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट, वो वाली जो रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी टुगेदर विद own tentative reasons for disagreement if any with the findings on the article of charge the government servant। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट who shall be required to submit his written representation or submission to the disciplinary authority within 15 days। इसके बाद उन्होंने क्या डालना है, 15 दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन डालनी है। ठीक है, 15 डेज के अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन डालनी है इन्होंने, irrespective of whether the report is favorable or not। और ये कोई मैटर नहीं करता कि वो फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है, whether favorable or not। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर हमने बात किया कि जो अपील वाला केस है ना, जो अपील ऑर्डर, जैसे आपको किसी अगेंस्ट के अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना है तो टाइम लिमिटेशन ऑफ पीरियड कितना था आपका, 45 डेज का था। यहाँ पर सिमिलरली जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जब उन्होंने अपने इंक्वायरी अथॉरिटी को उन्होंने बोला कि ठीक है भाई कुछ डिसएग्रीमेंट है इससे, इस डिसएग्रीमेंट के लिए वो क्या कर सकते हैं, इस डिसएग्रीमेंट के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो डिसएग्रीमेंट की जो कॉपी है वो जो है उनको इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ अपने जो डिसएग्रीमेंट के जो अपने जो उन्होंने राइटिंग में रिकॉर्ड किया है वो जो है दे देंगे इनको। ठीक है, जो है जो भी ऐप जो भी कौन है द गवर्नमेंट सर्वेंट को भेज देंगे। ठीक है, वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है विद इन 15 डेज जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे, चाहे वो फेवरेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, if in every case it is necessary to consult the commission, the disciplinary authority shall forward the case forward to the commission for its advice। अगर इन एवरी केस जहां पर भी नेसेसरी हो कमीशन को कंसल्ट करना तो वहां पर क्या करेंगे वो
he shall forward a copy of the report of the inquiring authority together with its own tentative reason for disagreement. ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा. तो ये हम बात करना चाह रहे हैं ना कि वो जो क्वेश्चन जिस तरीके से था वो इसके अंदर नहीं आ रहा है. हाँ, वो जो है आपका ये आ रहा है, आपका प्रोसीजर इसके अंदर आ रहा है. तो कोई बात नहीं, अपने इसको पढ़ना शुरू कर लेते, इसको पढ़ लेते हैं, वैसे पूरा कर लेते हैं इसको. ठीक है, लेकिन ये जो है आपका ये कहाँ पर आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज में रूल नंबर 14 पर आ रहा है. हम सीधे इंक्वायरी पर पहुंच गए, एक्शन पर पहुंच गए. ठीक है, चलिए लेकिन इसको भी पूरा कर लेते हैं अभी. ये तो चलिए, इसके बाद बोलता है फिर इज नेसेसरी टू कंसल्ट द कमीशन, तो कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी टुगेदर विद इट्स ओन टेंटेटिव रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट जो है वो भेजेंगे उनको, कमेंट्स ऑफ डिसिप्लिन अथॉरिटी ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट. और इसके अलावा अपने जो भी उन्होंने कमेंट्स दिए ना, ऑफ द डिसिप्लिन अथॉरिटी ने जो अपने कमेंट्स दिए ऑन द रिप्रेजेंटेशन, कि वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट वो क्या है, ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट एंड डिसएग्रीमेंट नोट इफ एनी. ठीक है, एंड ऑल द केस रिकॉर्ड्स ऑफ द एंड ऑल द केस रिकॉर्ड्स ऑफ द इंक्वायरी प्रोसीडिंग. द डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है शेल फॉरवर्ड और कॉस्ट टू फॉरवर्ड कॉपी ऑफ द एडवाइस ऑफ द कमीशन रिसीव्ड, जो भी वहाँ से मिलेगी ना उनको एडवाइस ऑफ द कमीशन. ठीक है, टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु शैल बी रिक्वायर्ड इज रिटन रिप्रेजेंटेशन और सबमिशन विद इन 15 days ऑफ द एडवाइस ऑफ द कमीशन. ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं नहीं, जहाँ पर नेसेसरी होगा ना वहाँ पर कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टुगेदर विद टेंटेटिव रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट. ठीक है, फाइन वो उनको भेज देंगे. कमेंट्स ऑफ डिसिप्लिन अथॉरिटी ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट एंड डिसएग्रीमेंट नोट इफ एनी, वो दे सकते हैं उसका. द डिसिप्लिन शैल फॉरवर्ड कॉपी ऑफ द एडवाइस ऑफ द कमीशन. Government servant shall be required to submit to desires his written representation or submission to the disciplinary authority within 15 days of the advice of the commission. दोबारा से कमीशन का रिप्लाई देने के बाद भी you have got 15 days. Okay, the disciplinary authority shall consider the representation, okay, under sub rule 2 way, and if any submitted by the government and record its finding. ठीक है, before proceeding further in the matter, फिर disciplinary authority जो है opinion है कि any of the penalties अगर फर्स्ट टू 4 लगेगी तो इम्पोजिंग गवर्नमेंट मेक एन ऑर्डर इम्पोजिंग सच पेनल्टी. अगर वो कहता है पेनल्टीज जो है ये लगेगी, मेक एन ऑर्डर सच पेनल्टी इट शैल बी नेसेसरी when the government servant for an opponent making representation then it shall not be necessary to give the government servant any opportunity of making representation to the penalty proposed to be imposed. ठीक है, regards to filing opinion that any of the penalties specified in this should be imposed on shall order imposing such penalty कर सकते हैं. It shall an order penalty withstanding anything contained. Okay, then the disciplinary authority have regard to the findings on the articles of base of penalty लगेगी, penalty लग रही है, तो गवर्नमेंट सेवन not be necessary to give the government servant any opportunity to give any opportunity or of making penalty proposed to be. Okay, देने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जब इन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट आई, वो डिसएग्रीमेंट करे तो उन्होंने डिसएग्रीमेंट किया तो उन्होंने एक कॉपी दिया विद इन 15 डेज वो रिप्रेजेंटेटिव. फिर अगर वहाँ पर जाएँ जहाँ पर कंसल्टेशन है कंसल्ट करना, वहाँ पर वो क्या करते हैं अपनी कॉपी रिपोर्ट की कॉपी की रीजन है. ठीक है, विद फाइंडिंग ऑफ द वो कमेंट्स ऑफ डिसिप्लिन अथॉरिटी अपने कमेंट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट. मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट को आपने टाइम दिया कि आप एडवाइस भी लेना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट एंड डिसएग्रीमेंट नोट एनी एंड ऑल द केस रिकॉर्ड ऑफ द इंक्वायरी प्रोसीडिंग. ठीक है, फॉरवर्ड कर देंगे फॉर द एडवाइस ऑफ द कमीशन विद इन 15 डेज जो है
government servant. Okay, then we have government servant who shall be required to submit if he so desires his written of for submission to the disciplinary within 15 days on the advice of the commission. आने के बाद जो 15 दिन में दे सकते हैं, रिकॉर्ड फाइंडिंग करेंगे, कोई भी पेनल्टी वो लगा देंगे, और इवन मेजर पेनल्टी के केस में भी कोई अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका रूल नंबर 14। ठीक है, रूल नंबर 15 था, सॉरी है रूल नंबर 14 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 15 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और 14 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है यही पूछ रहा है, इसके अंदर एक क्वेश्चन जो हमने अभी देखा ना, आ रहा है आपका ये वाला, हाँ, कि जो आपकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्टली वही पढ़ता हूँ अगर मैं आपका, after the conclusion of the inquiry report, it shall be prepared and shall contain the article of charge and statement of imputation of misconduct and misbehavior, the defense of the government servant in respect of each article of charge, an assessment of the evidence in respect of each article of charge, the findings on each article of charge and reasons therefore। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, यूं का यूं क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर, आ रखा है आपका 2018 में नंबर 83। तो ये कोई यूं का यू क्वेश्चन आ रखा है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। एंड सिंस ये क्वेश्चन आ गया तो वी हैव टू रिवाइज दिस, और हमें रिवाइज करना ही करना है। जस्ट जस्ट रूल रिवाइज कर रहे हैं तो आई थिंक इट नॉट टेक दिस मच ऑफ टाइम, और अगर टाइम लगता भी है तो भी कोई बात नहीं है, बिकॉज आज हम इसका कम से कम एक ही वाला जो पार्ट है ना ये कंप्लीट कर लेंगे तो इट विल बी, है ना। चलिए, हम बात कर रहे थे 83। चलिए बात करते हैं इसके मतलब प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब सबसे मैं कहूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रूल नंबर 14 है आपका। ठीक है, रूल नंबर 14 देखेंगे हम क्या है, बोलते हैं नो ऑर्डर इम्पोजिंग एनी पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन क्लोज, मेजर पेनल्टी वाला। ठीक है, शैल बी मेड एक्सेप्ट एन इंक्वायरी हेल्ड, मतलब मेजर पेनल्टी आप कोई भी नहीं ला सकते जब तक आप एक इंक्वायरी हेल्ड ना करेंगे, एज फार एज, ठीक है, इन दी मैनर प्रोवाइडेड इन द रूल नंबर इन दिस रूल, जैसे बता रखा है, या फिर रूल नंबर 15। ठीक है, जो एक्शन टेकन जो है इस तरीके से, ठीक है, ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट और इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट 1850 वेयर सच इज हेल्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं वेन एवर द मतलब कि मेजर पेनल्टी लगाने के लिए आपको आपको एक तरीके से आपको इंक्वायरी होल्ड करनी ही करनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं वेन एवर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है उनका ओपिनियन होता है दैट देर आर ग्राउंड्स फॉर इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ ऑफ एनी इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, इम्प्यूटेशन मतलब इल्जाम। ठीक है, अगर कुछ ऐसे इल्जाम है उनके मिसकंडक्ट पे या मिसबिहेवियर के, वेन एवर द डिसिप्लिन अथॉरिटी का जो ओपिनियन है कि देर आर ग्राउंड्स ऑफ इंक्वायरिंग इनटू द ट्रुथ एंड एनी इम्प्यूटेशन और मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इट मे इटसेल्फ इंक्वायर, या तो वो खुद कर सकती है, इनटू और अपॉइंट अंडर दिस रूल और अंडर द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट एज द केस में बी एन अथॉरिटी टू इंक्वायर इनटू द ट्रुथ देयर ऑफ। ठीक है, तो वो उसके लिए एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी को जो है अपॉइंट कर सकती है, और जितना वैसे उनको बचना चाहिए खुद से इंक्वायरिंग अथॉरिटी बनने से, प्रोवाइडेड दैट where there is a case of sexual harassment, ठीक है, within the meaning of rule 3C, ठीक है, the complaint committee established in each ministry or department or office for inquiry into such complaint shall be the deemed to the inquiring कर, तो कोई सेक्सुअल हरेसमेंट का केस आता है तो उसमें अंदर वो जो डीम्ड कंप्लेंट कमेटी जो होगी ना, उनकी जो सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट कमेटी जो है वो डीम्ड मानी जाएगी इंक्वायरिंग अथॉरिटी। ठीक है, अपॉइंट बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल्स एंड इफ सेपरेट प्रोसीजर हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस, ठीक है, फॉर होल्डिंग दिस, तो आपको आपको ये जो प्रोसीजर जो लेट किया है इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। वेयर द डिसिप्लिन इटसेल्फ होल्ड द इंक्वायरी, अगर वो खुद होल्ड करते हैं तो एनी रेफरेंस इन सब रूल 7 टू सब रूल 20 और सब रूल 22 दिस शैल बी कंस्टिट्यूट एज ए रेफरेंस टू द डिसिप्लिनरी। इस 7 से लेके आगे तक कुछ भी जाता है ना, 7 से 20 तक सब रूल दे रखे हैं आपका, तो है इट विल बी कंसिडर एज ए रेफरेंस, माना जाएगा डिसिप्लिन अथॉरिटी के लिए। फिर बोलता है डिसिप्लिन अथॉरिटी अपॉइंट्स, क्या जो है जहाँ पर जो कोई डिसिप्लिन अथॉरिटी है अपॉइंट करती है किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है, एज एन इंक्वायरिंग अथॉरिटी, कोई रिटायर्ड जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको भी एक जो है
ठीक है, जहाँ पर जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है वो अपॉइंट करती है एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है, एज इंक्वायरिंग अथॉरिटी। एनी रेफरेंस, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स क्या करते हैं कि डिसिप्लिन अथॉरिटी है वो अपॉइंट कर सकते हैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट को एज एन इंक्वायरिंग अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरिंग अथॉरिटी आपने किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को रख दिया, डिसिप्लिन अथॉरिटी कैन डू सो, ठीक है। Where it is proposed hold an inquiry against a government servant under this rule or rule 15, the decision authority shall draw up and cause it to be drawn up the substance of the imputation conduct. Where it is proposed to hold an inquiry against government servant, then the decision authority shall draw up the case or request to be drawn up, okay, like the substance of the imputation of misconduct or misbehavior and definite and distinct article of charges, ठीक है। okay? यहाँ पर भी बात करते हैं आपका कि where the रूल नंबर 2 आपका जो कह रहा है ना वो यही कहता है कि आपका अथॉरिटी जो है ये खुद भी कर सकती है या फिर अपॉइंट भी कर सकती है, ठीक है। इसमें एक्सप्रेस दिया कि जहाँ पर वो खुद करती है फॉर द इंक्वायरी एंड रेफरेंस, इंक्वायरी शैल बी कंसीडर्ड एज रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पर वो अपॉइंट करती है किसी को रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को, इंक्वायरिंग अथॉरिटी वो भी कर सकती है। जहाँ ये प्रपोज किया था टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर दिस रूल, ठीक है, तो शैल बी ड्रॉप टू, so this authority shall draw up, propose to be drawn up the substance of imputation of misconduct behavior into definite or distinct article of charges। उनको जो सब्सटेंस ऑफ इम्प्यूटेशन है जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं मिसकंडक्ट का, मिसबिहेवियर का, उनको डेफिनेट आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, डेफिनेट और डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस के अंदर बांटना है। अ स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट behavior in support of each article of charge, एक स्टेटमेंट देनी है which shall contain a statement of admission or confession made by government servant, ठीक है। a list of document by which a list of witness, ठीक है, वो जो कुछ भी आता है proposed to be sustained वो सब कुछ आपको दे देना है। The decision authority shall deliver or cause to be delivered to government a copy of the article of charges, the statement of the imputation of misconduct behavior and a list of document or witness by which each article of charge is proposed to be sustained, ठीक है, वो देनी है उन्होंने। On receipt of article of charges, जैसे इनको चार्जेस मिलते हैं ये, the government servant shall be required to submit his written statement of defense if he so desires and also state whether he desires to be heard in person within a period of 15 days। तो 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या आप सुनना चाहते हो, आप अगर आना चाहते हैं वो तो आएंगे। and further extend for a period not exceeding 15 days for reason to be recorded in writing on an authority authorized by the disciplinary authority in this behalf, ठीक है। फिर जो है प्रोवाइड दैट अंडर नो सर्कमस्टेंस द एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फिलिंग रिटन स्टेटमेंट डिफेंस 45 डेज, 45 डेज का डिफेंस का टाइम मिलता है इनको। 15 दिन के अंदर जैसे डिसिप्लिन अथॉरिटी ने जब उनको चार्ज वगैरह सब कुछ दिया, रिटन स्टेटमेंट से ले ली, जो मतलब उनको जो भी मिसकंडक्ट वाला जो था ना पोर्शन, दैट इज इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, उनको उन्होंने डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर उनकी स्टेटमेंट भी ले ली, फिर उनको स्टेटमेंट जो भी कंफर्म कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं या फिर वो कन्फेस कर रहे हैं वो वाली स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ विटनेस ले लिया, ठीक है। ये सब कुछ लेने के बाद जो है फिर ये सब कुछ भेज देंगे वो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक ये भेज देंगे उनके उनके पास जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपनी तरफ से एक रिटन स्टेटमेंट ऑफ देंगे इफ़ ही सो डिज़ायर्स, अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे देनी, ठीक है, इफ़ ही सो डिज़ायर्स एंड ऑल्सो स्टेट वेदर ही डिज़ायर्स टू बी हर्ड इन पर्सन, या फिर वो बताया कि अगर आप पर्सन जो सुनना चाहते हैं तो उनको या तो अगर वो सुन मतलब पर्सनली जो है आके मिलना चाहते हैं इन पर्सन विद इन 15 डेज वो आके मिल सकते हैं, विच में फर्दर एक्सटेंड फॉर पीरियड ऑफ 15 डेज। अगर रिकॉर्ड करना पड़ेगा इस केस में भी, ठीक है, राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा 15 दिन के लिए भी, और वहाँ पर नो सर्कमस्टांसेज एक्सटेंशन जो है वो आपका 45 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका 15, 15 और 45 डेज, ये टाइम आ गया आपका। दूसरा बात करता है ऑन रिसीट ऑफ द रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, तो आपको रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस मिल रही है, डिसिप्लिन अथॉरिटी में इटसेल्फ इंक्वायर, या तो वो खुद से इंक्वायर कर लेंगे या फिर आर्टिकल ऑफ चार्ज एज आर नॉट एडमिटेड ऑन रिसीट ऑफ द रिटन ऑफ डिफेंस, जैसे उनको मिलती है डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है मे इटसेल्फ इंक्वायर, या तो खुद इंक्वायर करेगी इनटू सच आर्टिकल ऑफ चार्जेस एज आर नॉट एडमिटेड, और इफ इट कंसीडर्ड नेसेसरी टू अपॉइंट अंडर इंक्वायरी अथॉरिटी कर दे, ठीक है। तो एंड वेयर ऑल द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, जैसे उन्होंने मान लिया एडमिट कर दिए इन हिज रिटन स्टेटमेंट, तो रिकॉर्ड कर देंगे इन फाइंडिंग्स को ईच चार्ज आफ्टर टेकिंग सच एविडेंस, ठीक है। फिर बोलता है इफ नो रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इज सबमिटेड, फिर वो क्या करेगा, और जहाँ पर डिफेंस खुद से इंक्वायरी कर रही है, ठीक है, टू डू सो
वहाँ पर वो जो है अपनी तरफ से एक इंक्वायरिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है सेल्फ इंक्वायर्स इनटू आर्टिकल ऑफ चार्ज और अपॉइंट्स इन इंक्वायरिंग। इट मे बी बाय ऑर्डर अपॉइंट अ गवर्नमेंट सर्वेंट और लीगल प्रैक्टिशनर एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो बात आ रही थी वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डिसिप्लिन अथॉरिटी कैन अपॉइंट अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एज इंक्वायरिंग अथॉरिटी। इंक्वायरिंग अथॉरिटी में वो किसी गवर्नमेंट रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको ले सकते हैं, ठीक है? और डिसिप्लिन अथॉरिटी इसके अलावा भी क्या कर सकती है, एक ऑर्डर में अपॉइंट कर सकती है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को एज ए लीगल प्रैक्टिशनर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ओके, फॉर दिस पर्पज द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज सीज्ड टू बी इन गवर्नमेंट सर्विस। यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर हो चुके हैं को इंक्वायरिंग अथॉरिटी बना सकते हैं, उनको प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी बना सकती है, ठीक है? तो इट में बाय एन ऑर्डर अपॉइंट अ गवर्नमेंट सर्वेंट और अ लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, टू बी नोन एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जिनको जाना जाएगा, ठीक है, जो कि पूरे केस को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं, इंक्वायरिंग अथॉरिटी हो गया आपके पास, प्रेजेंटिंग ऑफिसर आ गया आपके पास। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शेल वेयर इट इज नॉट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी फॉरवर्ड द जितने भी डॉक्यूमेंट जो है वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी को दे देंगे। क्या क्या है, आर्टिकल ऑफ चार्ज हो गया, उन्होंने बना रखे एकदम अलग अलग से, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, एविडेंस प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन दिस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो देना है जो है ये जो है एविडेंस देना है कि हाँ जी हमने डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया है। कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपॉइंटिंग द प्रेजेंट ऑफिसर, और जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो जिनको अपॉइंट किया है, ये सब कुछ आपको जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी को दे देंगे, ठीक है? नाउ द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है शेल अपीयर इन पर्सन, तो मान लीजिए वो आप इन पर्सन जो है आते हैं फॉर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी ऑन सच डे एंड टाइम विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट by the inquiring authority of the article of charge, and the statement of imputation misconduct as the may notice by writing specify that in behalf or within such further time no intended as the may below allowed। समझ में नहीं आया है, दोबारा पढ़ेंगे इसको। द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है शैल अपीयर, उनको अपीयर होना है वहाँ पर फॉर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी ऑन सच डे एंड सच टाइम within 10 working days from the date of the articles of charge। दिन का आर्टिकल ऑफ चार्ज लगेगा तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर उनको इंक्वायरी अथॉरिटी के पास पेश होना है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर एज द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में बाय नोटिस in writing specify in this behalf or in such further time not exceeding 10 days as inquiring authority may allow। मतलब आपको 10 दिन का ही टाइम मिलेगा बस, ठीक है? तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इन पर्सन आता है फॉर द इंक्वायरिंग अथॉरिटी ऑन सच डे एंड टाइम, तो वहाँ पर ये जो 15 डेज की देते थे, तो 15 डेज जो आपको टाइम दे रहे हैं, ये 15 दे रहे हैं आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के लिए, ठीक है, 15 दिन के लिए। और फिर दोबारा से एक्सटेंड कर जाते हैं 15 डेज, बट किसी भी केस में 45 डेज से एक्सटेंड नहीं होगा और फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। और यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट शेल अपीयर इन पर्सन, अगर अपीयर इन पर्सन होता है अथॉरिटी सच डे एंड सच टाइम इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द moment of behavior as the inquiring authority may by notice in writing specify staff or in such further time not exceeding 10 days। यानी कि अगर उनको एक स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देनी है तो वो 15-15-45 है, लेकिन अगर इन पर्सन होना है वहां पर उनके पास तो इन पर्सन आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। तो इन पर्सन आपके पास 10 दिन आ गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस केस में, ठीक है? अगर आपको इन पर्सन आना है, इन पर्सन अगर आना है आपको तो 10 दिन है, और अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देनी है, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, तो आपके पास 15-15-15 15-15 दिन है टोटल, 15-15 दो बार, मैक्सिमम 40। द गवर्नमेंट सर्वेंट मे टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट, श्योर की भी ले सकते हैं, may take the assistance of any other government servant
in any other office, in any office, either at his headquarter or at the place where the inquiry is held. कर भी ले सकते हैं किसी असिस्टेंट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट क्योंकि जब पोस्ट हो रखा है वहीं पर ही हेडक्वार्टर में या फिर कहीं जो है एट अ प्लेस वेयर द इंक्वायरी इज हेल्ड, जहाँ पर इंक्वायरी हेल्ड हो रही है वहाँ पर ऑन बिहाफ, बट मे नॉट एंगेज अ लीगल प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिशनर को एंगेज ना करें फॉर द पर्पस अनलेस द presenting officer जो है appointed by this the legal practitioner or disciplinary authority having regard to certain case so ठीक है, provide that the government servant may take the assistance of government servant, the inquiring authority having regard to the case recorded to be in permits, inquiring authority का permit कर दिया तो वो जो person है वो outside आउट स्टेशन भी हो सकता है, ठीक है। गवर्नर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके पास 3 पेंडिंग केसेस जो अभी तक चल रहे हों, और अगर कोई लीगल प्रैक्टिशनर है तो उसके उसके 5 से ज़्यादा नहीं चलने चाहिए, ठीक है। The government servant shall not take the assistance of any other government servant who has 3 pending cases and he has to agree give assistance. The government servant may also take the assistance of a retired government servant to present the case subject to this that he must present by the president from time to time, ठीक है जी। The government servant who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defense or has not submitted any written statement of defense appears before the inquiring authority. Such authority shall ask him whether he is guilty or he has any defense to make. If he pleads guilty to any of the articles of the inquiry shall record the reason. Okay? Record the please sign the record and obtain the of the government servant thereon. Inquiring authority जो है shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to the government servant pleaded guilty, ठीक है, shall return a finding of guilt. Yeah, the inquiring authority shall if the government servant fails to appear within the time 10 दिन के अंदर in person और वैसे time और and refuse omits to plead, refuse कर देता है to plead, require the presenting officer to present evidence by such by which he proposes to prove the articles of charge and shall adjourn the case to a later date not exceeding 30 days after recording. Note that the government servant may for the purpose of hearing his defense. ठीक है, तो क्या कर सकता है अगर कोई भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी है अगर वो द गवर्नमेंट सर्वेंट फेल टू अपीयर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम 10 दिन के अंदर नहीं आता या फिर रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई नो और ओमिट्स टू प्लीड मेरी गलती थोड़ा है, रिक्वायर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रोड्यूस द एविडेंस बाय व्हिच ही प्रोस्पेक्ट्स टू प्रूव द आर्टिकल ऑफ चार्ज, तो फिर क्या करना है प्रोड्यूस द एविडेंस, ठीक है, एंड शेल एडजर्न द केस और केस को एडजर्न कर देंगे द केस टू अ लेटर डेट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, यहाँ पर जहाँ पर वो रिफ्यूज कर देते हैं जहाँ पर जो है ही फेल्स टू क्लियर या फिर ही रिफ्यूजेज वहाँ पर क्या है उनको 30 दिन का जो है टाइम दिया जाएगा नॉट लेटर नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग एन ऑर्डर did not exceed in 30 days after recording an order that the government servant may for the purpose of preparing his defense. Okay. Inspect within 5 days of the order or within such further time not exceeding 5 days as the inquiring authority may allow the documents specified in the list referred in this. ठीक है, 5 days यहाँ पर दिया है आपने इनको, तो वो जो क्या कर सकते हैं आप तभी तभी अगर मान लीजिए कोई फेल हो जाता है आप रिफ्यूज करता है कि नहीं मैंने तो कुछ भी किया, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो भी होगा क्या करेंगे इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है वो एडजर्न कर देंगे केस को कितने 30 दिन के लिए, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, ठीक है, और यहाँ पर उनको लिख के देंगे उसके अंदर कि आप इंस्पेक्ट कर लीजिए विद इन 5 डेज ऑफ ऑर्डर, ठीक है, एंड विद इन सच फर्दर नॉट एक्सीडिंग 5 डेज एट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में अलाउ सच फर्दर टाइम मतलब 5 दिन का 2 बार टाइम दे सकते हैं, ठीक है, एंड सबमिट a list of witness to be examined on his behalf and submit a list of examined to be ठीक है, नोट the government servant applies orally or in writing for the supply of copies of the statement of witness, applies for orally या फिर writing में देता है वो कॉपी दे दीजिए स्टेटमेंट विटनेस की मेंशन दिस the list referred to sub rule 3, the inquiring authority shall furnish him with such copies as possible if but not later than 3 days before the commencement of the author shall furnish him copies as early as possible and not later than days before the commencement of examination of the witness on behalf of this examination of
आपको नॉट लेटर देन 3 days फायरिंग ऑफ इट, 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना। 3 दिन से पहले पहले मतलब जैसे हमें 30 days का जब टाइम दिया उनको भी 30 दिन के अंदर अंदर आए ताकि आपको यहाँ पर जो है आप इंस्पेक्ट कर 5 दिन अपने इन 5 days द ऑर्डर फर्दर टाइम जो है नोट एक्सीडिंग be allowed to specified in the list and submit a list of witness to be examined on the तो बोल दे जाएंगे बस आप लिस्ट ऑफ एग्जामिन तरीके से जो है ओरली और राइटिंग देंगे आपको तो आपको विदिन जो है नोट लेटर देन 3 days फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन को दे देना। थर्ड बोलता है इसी का ही दैट गिवन नोटिस इंस्पेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को 5 days के अंदर सबमिट विटनेस ऑफ एग्जामिन, ठीक है। अभी वो डॉक्यूमेंट जो मांगता है ना यहाँ से ओरली राइटिंग में तो उनको फर्निश देना 3 दिन से पहले। गिव अ नोटिस विदिन 10 days ऑफ द ऑर्डर और विदिन सच फॉर द टाइम नोट एक्सीडिंग 10 days not for the very mail off for the discovery or production of document which are the position of the not mentioned the notice the notice within 10 days of the order or within of the discovery of any document are in the position of the को भी जो है इस 10 days के अंदर ले सकते हैं। फिर बात करता है द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इंडिकेट द रेलेवेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट acquiring authority shall on the receipt of notice from the discovery of the document forward the same of copies thereof to the authority in the position with the requisition acquiring authority के पास आएंगे notice for the discovery of documents forward the same provide the inquiry authority reason in main on receipt of request referred to the every authority having the custody within documents is the same will be certified before the within 1 month. Provide that if the authority having the custody of this there is no documents can inform the acquiring authority or inform pro that on the fixed date of inquiry. Okay, the oral and document evidence by the articles are the proposed to produced on the इसमें authority के क्या present the oral evidence by which the articles of charge are proposed, okay, are proposed shall be produced by or on the date fixed for inquiry जो भी date fixed करेगी ना inquiry के लिए oral and document evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be by on behalf of the witness shall be examined by or presenting of right? तो इस तरीके से काम करेगा on the date fixed for inquiry, okay? Just give me a break of 2 minutes, please.
तो हम हैं यहाँ पर अभी रूल नंबर 14 पर। कहते हैं ऑन द डेट फिक्स फॉर इंक्वायरी, जो भी डेट जो है फिक्स की गई है इंक्वायरी के लिए, ठीक है, द ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय विच, जो भी पढ़ रहे हैं वो ये रूल्स हैं। रूल नंबर 14 है अभी, 14 के 14 पार्ट पर। ऑन द डेट ऑफ फिक्स फॉर द इंक्वायरी, oral or documentary evidence by which the article of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of this witness जो है shall be examined by or on behalf of presenting officer and may be cross examined by or on behalf of government servant. Okay, so the presenting officer shall be entitled to re-examine the witness on points on which they have been cross, but not on a new matter, but not on any new matter, without the leave, without the permission of the inquiring authority. Inquiring authority may also put such question उनको अच्छा लग, जो उनको ठीक लगता है, as it thinks fit. फिर बोलता है if it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the inquiring authority may allow the presenting of evidence not included in the list given, को evidence दे दीजिए जो कि not included in the list given the government servant, or may itself call for new evidence or recall or re-examine any witness. In such case, government servant shall be entitled to have it if demands it copy of the list of further evidence proposed to be and an adjournment to the inquiry for 3 clear days. 3 दिन के अंदर जो है जब भी न्यू आएगा, एविडेंस आएगा, तो आपने क्या करना, फॉर 3 क्लियर डेज दे देना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच inclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. Okay, the inquiry for the day of the adjournment and the day which the inquiry is adjourned. 3 clear days दे देना. Okay, the inquiring authority shall give the government certain reports before they are taken on record. Then they may also allow the government servant evidence saying that the new evidence shall not be permitted or called, or for any witness shall not be recalled to fill up the gap in the evidence. The new evidence shall not be permitted. एविडेंस जो है परमिट नहीं किए जाएंगे, और कॉल्ड फॉर any witness shall be recalled to fill up the any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when the government there is an inherent lack or defect in which has been produced originally. ठीक है, तो जो न्यू एविडेंस है shall not be permitted or called for, any witness shall not be recalled to fill the gap in evidence. Okay, बोलते हैं such evidence may be called for only where there is a inherent lacuna or defect in the evidence has been produced originally. क्या बोलता है, when the case of the disciplinary authority close, अपनी तरफ से close हो गया, then the government servant shall be required to state his defense orally or in writing as may be. In the defense, if the defense is made orally, it is recorded and the government servant shall be required to sign the report. Other case, a copy of the statement of defense shall be given to the presenting officer if any. The evidence on behalf of government servant shall be then produced. The government servant may examine himself in his behalf or prefers, and the witness produced by the government servant shall then be examined and then shall be liable for cross-examination, re-examination, examination by inquiring authority according to the provisions applicable to witness. The inquiring authority जो है उसके बाद जो है after the government servant closes his case, तो क्या करेंगे, shall government servant has not examined himself generally question him on the appearing such the evidence for the purpose for explain any circumstances पे कि आपको इसके अलावा कुछ बताना चाहते हैं किस circumstance की वजह से हुआ है. Inquiring authority may after the completion of hear the presenting officer सुनते हैं if any appointment for the government file written briefs of their respective cases. ठीक है, if the government servant to whom a copy of the article of charge has been delivered does not submit the written statement, तो उस केस में आप स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, एंड डज नॉट अपीयर इन पर्सन, क्या करेंगे, और रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस बारे में होल्ड द पार्ट वेरी एक्स पार्ट है. फिर इसके अलावा बोलते हैं वेरी डिसिप्लिन अथॉरिटी कंपेयरिंग टू अपोज एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड माइनर पेनल्टीज की बात करें, बट नॉट कंपेयरिंग टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज इन दिस, ठीक है, एज इट सेल्फ इंक्वायर्ड इनटू और फाइंडिंग, तो इन दैट पेनल्टीज जो है वो है
इस बोलेंगे should be imposed on the government that inquiry shall forward the records of the inquiry to such as it compose that last is mentioned, but not concurrent as itself inquired or forced to be inquired. The articles of charge that the body have body. The disciplinary authority जो है तो ये कहना चाह रहा है कि जिस भी जो भी डिसिप्लिन अथॉरिटी अगर सिर्फ उनके पास माइनर पेनल्टी जो है चार्ज करने की, और अगर उनको डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स में पाया गया कि वो मेजर पढ़ने लग जाए तो उनके पास भेज देंगे जो भी कॉम्पिटेंट है इसके। डिसिप्लिन अथॉरिटी टू विच द रिकॉर्ड्स आर सो फॉरवर्ड में एक्ट ऑन एविडेंस। ठीक है, एविडेंस पे काम करेंगे, फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं, रिकॉल द विटनेस, एग्जामिन री एग्जामिन द विटनेस, may impose such penalty as it may deem fit. Whenever जो है inquiring authority after having heard and recorded evidence ceases to exercise jurisdiction therein and is succeeded by another inquiring authority may act on the evidence partly recorded by itself. तो ये कहता है whenever any inquiring authority after having heard or and recorded the whole or any part of the evidence in inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, यहाँ पर हो गया आपका, and is by another inquiry authority which has new inquiring authority आगे which has exercised which exercises such the inquiry that is so exceeding so recorded partly recorded by his predecessor, partly recorded by itself. Provided that if successful examination with witness जो है कॉल एग्जामिन कर सकती है. After the conclusion of the inquiry report, a report shall be prepared and it shall contain ये एग्जाम में अंदर आया हुआ है आपका, अगर the article of charge and the statement of imputation. पहले conclusion of the inquiry हो गया तो the article of charge क्या गया, statement of imputation, the defense of government servant in respect of each article of charge, the defense of government servant. गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, द डिफेंस की आपका क्या डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, एन असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन आर्टिकल ऑफ चार्ज, द फाइंडिंग्स ऑन ईच आर्टिकल, द रीजंस देयरफॉर, द डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर्टिकल, ऑफ द एविडेंस, द फाइंडिंग्स ऑन आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड रीजंस देयरफॉर. ठीक है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी अ रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड. इसके अंदर आर्टिकल ऑफ चार्ज होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ इम्पिटेशन, क्या पहले तो चार्ज और स्टेटमेंट ऑफ the defense of the government servant, and article, assessment of evidence and the findings on each article. Okay? And if the opinion of the inquiry or the proceedings of the inquiry establish any charge, article of charge different from the original charge, what its finding on the article of charge. Okay? So that if in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry uh, establish any article of charge different from the original articles of the charge, what its finding on such article of charge. Okay? अगर इंक्वायरिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो स्टार्टिंग में हमने एस्टेब्लिश किया था चार्ज उससे थोड़ा सा हटके जा रहा है तो वो अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं. प्रोवाइड दैट फाइंडिंग्स ऑन सच आर्टिकल ऑफ चार्ज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड अनलेस गवर्नमेंट सर्वेंट हैज ईदर एडमिटेड द फैक्ट्स ऑन व्हिच सच आर्टिकल ऑफ चार्ज इज बेस्ड और हैज a reasonable opportunity of defending himself against charge. और इसके अलावा जो है सच आर्टिकल ऑफ चार्ज जो है शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड नहीं करने हैं unless the government servant has either admitted the facts, तो उसने एडमिट कर लिया है फैक्ट्स को, ऑन विच सच आर्टिकल ऑफ चार्ज इज बेस्ड और हैज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ. ठीक है, दूसरा बोलता है कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है देयर इट इज नॉट इटसेल्फ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सेल्फ फॉरवर्ड द रिकॉर्ड. ठीक है, क्या क्या भेजेगा, द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इट अंडर क्लॉज 1. ठीक है, फिर इसके बाद रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, फिर आपका ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ठीक है, oral भी और documentary evidence दोनों. Produce the course of inquiry, written briefs in any case filed by the presenting officer of the government and both the course of during the inquiry, orders if any made by disciplinary authority and inquiring authority in regard to the inquiry. ठीक है, कोई भी जो orders है if any made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry. ठीक है, inquiring authority जो है उनको भेजेंगे. ठीक है, फिर बोलता है आपका inquiring authority should conclude the inquiry. ठीक है, and submit it to within a period of 6 months date of receipt of his order of his appointment. inquiry को 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये करना है. But it is not possible to adhere the time
Clause A, the inquiry authority may record the reasons and seek a time limit. Writing may allow an additional time exceeding not exceeding 6 months. दोबारा 6 महीने दे सकते हैं. Extension for a period exceeding 6 months at a time may be allowed at any prudence review. Extension for a period of not exceeding 6 months at a time may be allowed for any good and sufficient reason to be recorded in writing by the disciplinary authority and any other authority authorized by the yeah. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रूल नंबर 14 है वो पूरा होता है. तो हमारा एक क्लियर हो गया आपका. पर फिर 82 पर आते हैं हम आपका 82 के बाद. ये हमारा क्लियर हो गया है, ये भी हमारा क्लियर हो गया है. ठीक है, एक कॉपी ऑफ लिमिटेशन अपील कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर. ठीक है, period of limitation to appeal from which a copy of the order appeal against is delivered to the period of limitation to appeal from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the 45 days के अंदर देना बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 15 यही कह रहा था हमारा. रूल नंबर 15 नहीं था वहाँ. तो भाई लिमिटेशन टू 25 पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 45 डेज लगेगा. ठीक है, क्वारी जो है 6 महीने, फिर दोबारा 6 महीने के वो ले सकते हैं आप. ठीक है, तो एक बार जस्ट देख लेते हैं, एक बार दोबारा 6 महीने ले सकते हैं. इसके अलावा कोई भी अगर पर जो हमने डेट्स जो करी एक बार उस पर देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी. स्टार्टिंग में ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे वो रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देता है, 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन एक्सीड कर सकते हैं. और इसके अलावा अंडर नो सर्कमस्टांसेस जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर डिफेंस शैल एक्सीड 45 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, यही 45 डेज यहाँ पर भी, और यही 45 डेज आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर भी है. ठीक है, इसके अलावा दोबारा टाइम करें तो 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको इन पर्सन होना है. दोबारा से एक्सीड किया था 10 नॉट बट नॉट मोर देन 10 फॉर दिन. ठीक है, यहाँ पर एक्वायरिंग अथॉरिटी जो है एडजन करनी है तो उसको वहाँ पर 30 के लिए कर सकती है. 5 दिन का टाइम दिया जाएगा टू इंस्पेक्ट दी डॉक्यूमेंट्स नॉट एक्सीडिंग 5 डेज अगेन. ठीक है, और 10 दिन के अंदर अंदर उनको नोटिस देना है. तो फॉर द टाइम एक्सीडिंग 10 डेज give a notice within 10 days of the order. इनमें से the time not exceeding 10 days as the inquiring must for the discovery of production of documents जो कि उनकी पोजीशन में नहीं है. ठीक है, ये दे सकते हैं जब यहाँ पर बिफोर इंक्वायरी ऑफ विटनेस 3 days. ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट अर्ली अप्लाइज नॉट लेटर देन 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस. वो जो डॉक्यूमेंट्स है 3 दिन के अंदर अंदर उसको पहले पहले देना है. उनको एक नोटिस देना 10 days के अंदर अंदर, 10 days ऑफ द ऑर्डर. ठीक है, 10 days इज द डेज फर्दर दे सकते हैं. भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं उनको बस एक महीने दे देना है. ठीक है, इसके अलावा कोई भी इंक्वायरिंग अथॉरिटी के बाद नया एविडेंस आता है तो उसको 3 क्लियर डे दिए जाते हैं यहाँ पर. ठीक है, इसके अलावा बस यही है, 6 मंथ्स और 6 मंथ्स का टाइम है. ठीक है, क्लियर हो गया हमारे पास. आगे देख लेते. नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन गवर्नमेंट बी मार्क्ड एज डाइज नन absence from duty without prior permission. When on duty in a government servant leaves the office without proper permission. When on duty the official remains in office but refuses to perform duties assigned to him. An official comes late even though he works throughout the day during the work. डाइसन का भी हमने केस नहीं देखा है, अभी पढ़ा है इसके बारे में. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 81 आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट अमाउंट टू अ पेनल्टी. पेनल्टी कौन सी नहीं होगी? ठीक है, withholding of increment of a government servant for his failure to pass an departmental examination. ठीक है, ये दिस इज नॉट अ पेनल्टी, ये करेक्ट है. कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, हाँ, इन अकॉर्डिंग विद द टू सुपरनेशन. ठीक है, ये भी है आपका. रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ नेगेटिव लॉस कॉज्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट टू द नेग्लिजेंस ऑफ ब्रीच ऑफ ऑर्डर. रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पिक्यूलियर, वन और टू तो है पक्का पक्का.
the recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss by a government servant. Recovery from pay of, अब मुझे डाउटफुल लगा। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है इसको और अभी हम कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या लगाओगे आप? रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी pecuniary लॉस caused by a government servant, the government by negligence or breach of order। ताकि मैं इसको तीनों का आंसर दूँ करेक्ट है ये, ठीक है। इन हाँ था ये नॉट अमाउंट टू पेनल्टी, नंबर 11 पर है आपका ये। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट एट कंपल्सरी रिटर्न रिप्लेसमेंट ऑफ सर्विस, रिवर्जन आ गया, रिवर्जन आ गया आपका। हाँ ये तो माइनर पेनल्टी है ना यार, रॉन्ग, द माइनर पेनल्टी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से सुलझा देते हैं। Recovery from pay or the whole part of benefit was caused by the government servant to the government by negligence of orders। ऐसे ही उलझते हैं यार क्वेश्चंस में। देखिए तब ये तो हमें याद था, तीसरा वाला याद नहीं था, और हमें ये याद नहीं आया कि माइनर पेनल्टी तो नहीं है कहीं। रिकवरी फ्रॉम पे और होल पार्ट ऑफ was caused by the government servant to the negligence by the pathetic। याद कर लीजिए दोबारा से क्या क्या है आपकी माइनर माइनर पेनल्टीज, क्या क्या है मेजर पेनल्टीज, क्या क्या है। सबसे पहले आपका सेंश्योर, फिर विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, फिर विद होल्डिंग ऑफ पे भी है, ठीक है। विद होल्डिंग ऑफ पे, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन भी है, और फिर आपका रिकवरी, रिकवरी है ना, रिकवरी फ्रॉम पे द होल पार्ट और एनी पिक्यूरियर लॉस कॉज्ड बाय हिम बाय नेग्लिजेंस ऑफ ब्रीच ऑफ ऑर्डर, माइनर पेनल्टी है। देन रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। मेजर पेनल्टी है आपके पास टू लोअर स्टेज विद फर्दर डायरेक्शंस will earn increment not, ठीक है, increment during the period or expiry of such period, reduction will or will not have the effect of post increment। पे की बात आ गई, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज टू अ पे पोस्ट सर्विस। वही आपका एग्जाम के अंदर आया आपका, ठीक है। इसके अलावा विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट के अंदर आया है 2018 में, क्वेश्चन नंबर 81 है, ठीक है। देन वी हैव कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम इसका, ओके। रिकवरी ऑफ ये हो गया, ये हो गया। ग्रेड पे करते हुए चले बार परफॉर्मेंस इन द हाई कंपल्सरी रिटायरमेंट और आपका रिमूवल और डिसमिस, ठीक है। तो ये है आपका, और कौन कौन सी इसमें, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, फेलियर टू पास एन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, एफिशिएंसी बार, नॉन प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन सबस्टेंडिंग और ऑफिशियल कैपेसिटी आफ्टर केस टू सर्विस व्हिच इज एलिजिबल, नॉन प्रमोशन, विद होल्डिंग ऑफ बात कर रहे हैं, नॉन प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। रिवर्जन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशियल टू हायर सर्विस टू लोअर सर्विस, रिवर्जन कर दिया आपने, रिकवरी रिडक्शन नहीं, रिवर्जन कर दिया आपको गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिस हायर सर्विस, ग्रेडर पोस्ट टू अ लोअर सर्विस, ग्रेडर पोस्ट इज कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर हायर पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर उसको अनसूटेबल रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्जन जो है प्रोबेशन कर सकते हैं। और आपका रिप्लेसमेंट ऑफ द सर्विसेज ब्रॉट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, अगर वो पहले से प्रोबेशन में दे रखा है टेम्परेरी सर्विस पर और एग्रीमेंट नहीं कंपल्सरी, ठीक है, ओके। ये बोलता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पेनल्टी शेल नॉट ओनली बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट,
Which of the following major penalties shall not only be disqualification for future employment? For future employment, okay. डिसमिसल जो है ना, डिसमिसल डिसमिसल से होता है आपका दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन. दिस विल एक्चुअली which of the following major penalties shall not ordinarily be disqualification. shall not कह रहा है ना for future employment. ठीक है, तो dismissal कौन सा थर्ड नंबर काट दो. थर्ड 1 to 4 है आपका. टर्मिनेशन और रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट हो कैसे भी हो आपका, इवन टर्मिनेशन भी होगा तब भी आपका ये आएगा. ठीक है, बोलता है द टोटल नंबर ऑफ मेजर पेनल्टीज इसका अंडर रूल 11. मेजर पेनल्टी है वो 5 है. ठीक है, according to CC classification, when the authority competent to impose on a government servant any of the penalties specified therein is called, according to CC's classification, control and appeal. The authority competent to impose on a government servant any of the penalties कोई दे सकती है. कौन है आपकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है ना. पर अगर हम बात करें करना चाहिए. अच्छा, इसके बारे में एक बात और भी है. एग्जाम में आया कि आपका नंबर 80 मेजर पेनल्टी. एनी ऑफ द पेनल्टी अथॉरिटी है या अपॉइंटिंग. एक बार देख लेते हैं आपका पेश. अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या कहता है. बोलते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी all appointments to a central citizen group A and central will be made by the president. Okay, provided that the president may by general or special order delegate this power. ठीक है, delegation to administrators. President hereby orders that all appointments of all appointment to the civil services other than group B, C, D shall be made by the specified in all appointment to the central civil service other than general central service group B, C, D shall be made by authority specified in this behalf. Provided that in respect of group C, D civilian जो है by officers empowered all appointment central civil post B, C, D including general shall be made by the authority specified in the president. ठीक. अगर हम ग्रुप ए की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की होना चाहिए फिर जो जिनको डेलीगेट किया गया पावर्स को. All appointment to central civil services BCD shall be authority specified in this behalf in the schedule. Okay, shall be made authority specified in this schedule. और provided group CD जो है ना, तो COD civilian services जो है इसमें COD civilian services in the defense. यहाँ पर ग्रुप बी की बात कर रहे हैं. ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द सेंट्रल सिविल सिविल पोस्ट की बात कर रहे हैं. सेंट्रल सिविल सर्विस की बात थी, पोस्ट की बात कर रहे हैं. शेल बी सेंट्रल सिविल पोस्ट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं. BC जनरल मेड बाय द अथॉरिटीज जनरल specified in the schedule. These are the general या फिर special by the president. ठीक है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है का है
रूल नंबर पेनल्टीज एंड 12 के अंदर आ सकता है, एक बार चेक कर। तो प्रेसिडेंट जो है, ये थोड़े बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है इसके बारे में। रूल नंबर 12 पढ़ते हैं, मतलब द प्रेसिडेंट जो है मे इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल, ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस सब रूल 1 and but subject to the provision of rule sub rule 4, any of the penalties may be imposed on a member of a central civil service other than general appointed by the appointing authority. Member of central civil other than general central service by the appointing authority or the specified in the schedule behalf or and the authority powered in this behalf by special uh, the authority competent to impose on a government on any of the penalties that they are involved, बोलेंगे उसको या appointing authority तो हुई ना। appointing authority आपने पढ़ा, appointing authority तो हुआ ही ना, जब वो क्या क्या उनको अपॉइंट करेंगे सिर्फ इसके बारे में बात, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन कर सकते अलावा जो है ईसीडी के अंदर कौन करेगा, तो इस तरीके से प्रेसिडेंट या फिर जो भी ऑथराइज होंगे, ठीक है, डिसिप्लिन अथॉरिटी होगा इनका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर बोलते हैं प्रेसिडेंट जो है मे इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड, ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ द सब रूल 1 but subject to the provisions of sub rule 4, any of the penalties specified in rule 11 may be imposed on a member। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। बोलते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1, ठीक है, but subject to the provision of sub rule 4, any of the penalties specified in rule 11 may be imposed on a member of central civil service, ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस अदर देन द जनरल, अदर देन जनरल, जनरल सेंट्रल कौन सी हुई आपकी, जैसे आपकी डिफेंस वाली जो होती है ना, ठीक है, और ये सिविल सर्विसेज जो इधर की आपको यूपीएससी वाली जो होती है, by the appointing authority, member of a central civil service other than the general by the appointment of the authority specified penalty special may be imposed on central civil services or general by the appointing authority or the authority specified in the schedule in the behalf allowed in the behalf by the higher appointing, okay? Person appointed to central post include the general civil by the authority behalf there no, तो यहाँ पर भी अपॉइंटिंग है सेंट्रल सिविल पोस्ट, द जनरल person was central civil post defense in the general civil by the authority by president of, subject to the provision of sub rule 4, 4 the power to impose any can also be exercised in case of other than group C secretary, group C के बारे में बात, ग्रुप डी के बारे में बात, if he is serving in an office of that office, okay, so head of that office and or in rank in, if he is serving in an office, the head of office, except where the head of office is lower in rank than the he competent to impose a penalty
sub rule 2. By the head of the office, except, एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट वेयर द हेड ऑफ ऑफिस। अभी तक तो दोनों में देखा हमने, ये इसका जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इसका आंसर निकल के आ रहा है। सर्विंग बाय द हेड ऑफ, एक्सेप्ट वेयर द rank, then the authority competent to impose the penalty under sub rule 2. If the head of is lower in rank, the authority competent to impose the penalty. This rule not anything contained in this rule, except where the penalty specified in clause 4 to 6 by the CAG or on in this. No penalty specified in clause this to this. Except where the penalty specified in clause 5 or clause 6 of the rule 11. Clause 5 or clause 6. Uh, imposed by the CAG. In penalty specified in clause 5 to 9 imposed by an authority subordinate to the appointing authority. Then nothing, the penalty clause specified in this imposed by the CAG, a member of no penalty specified to this that shall be imposed by any authority. कह रहे हैं कि अगर सी ने, अगर सी इन दोनों में से कोई पेनल्टी लगा दी, उसके बाद नो पेनल्टी in this to this will be imposed according to the government servant who is a member of a service other than the general servant who has been substantially appointed to any civil in the general civil service, temporarily appointed to any post or authority. There a government servant who is a member of a service, then who has been appointed to a civil post, be appointed to any other service. As it has consulted is about have effect of a probationer for going training at law branch. Was provision the procedure down in this. For the purpose of clause C, probationary sent here a government जो है current belonging to a service in a civil post group promoted whether on probation group shall deem to for the purpose this will be belong to the service or the universal higher group. एग्जाम में आया of the penalty board. In made
imposed by another. Where the government servant belongs to service, holding the central civil post of belonging to a yes, central is promoted, promote कर दिया है ठीक है, whether on probation will be deemed for the purpose of this belong to the hold the central post of the promotion पे होगी temporary powers delegated to chief. So the chief commissioner might over any member of service group the then current duties of post can or overrule the order of the regular hold the current duties of a post where the appointment in case where the officer was discussed will be tenant for the discipline of charge paper चलिए तो इसमें आपका जो आंसर आया है वो आंसर आया आपका प्रेसिडेंट जो है 42 the president or any other empowered by him the president or any other empowered by him that is conflict ये according to sin the authority competent to impose on a government servant any of the penalties right there यहाँ पे बोलता है the president जो और any other empowered by him by general or special order may okay institute discipline proceeding against any other government servant okay or direct a discipline empowered by may direct institute discipline proceeding against any government impose under these rules any of the penalties and तो ये president जो है empowered by him by the made direct decision authority ठीक है government servant that decision authority जिसमें that decision
what is compose competent was and discipline authority competent and impose penalties. This may institute citizen against the imposition of and this to this will have notwithstanding that certain is not a discipline authority competent a discipline authority competent under these rules जो भी competent है ना under these rules to impose any of the penalties minor penalties जो लगा सकती है may institute कहता है may institute disciplinary proceedings against any government servant or may institute disciplinary proceedings कर सकती है वो ठीक है against any government servant for the imposition of this may institute कह रहा है ये may institute डिसिप्लिन जो कि जिसके पास पावर है कोई इसको इंस्टीट्यूट एनी पेनल्टी स्पेसिफाइड इन दिस may institute disciplinary proceedings against any government servant for the imposition any penalty specified in this of rule 11 not within that such discipline is not competent ये कर सकती है देखिए कोई भी डिसिप्लिन अथॉरिटी अगर मान लीजिए जिनके पास पावर है टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज माइनर पेनल्टीज जिनका लगाना है लेकिन वो कर सकते हैं अपनी तरफ से डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं उन गवर्नमेंट के अगेंस्ट खिलाफ भी फॉर द इम्पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन दिस नॉट विद द कि वो कंपिटेंट जो नहीं है अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज एनी तो वो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट कर सकती है ठीक है और प्रेसिडेंट जो है बाय ऑर्डर इंस्टीट्यूट डिसिप्लिन अथॉरिटी अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट और डायरेक्ट डिसिप्लिन अथॉरिटी कंपिटेंट टू इम्पोज ठीक है रूल नंबर हमारा 10 बोलता है इसके अंदर प्रेसिडेंट जो है मे इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11 ऑन एनी गवर्नमेंट सर्वेंट without prejudice to the provisions of Rule 1 but subject to the provisions of Rule 4. The penalties specified in Rule 11 may be imposed on and a member of provisions of the sub-rule first the subject but subject to the provisions of sub-rule 4 any of the penalties specified in Rule 11 may be imposed on a member of civil service by the appointed authority. Provisions of sub-rule 4. According to the government servant any of the penalties specified therein कौन कर सकता है it I think ये कहता है without prejudice to the provisions but subject to the any of the penalties imposed on any of the penalties therein central civil other than the appointing authority central civil district
इस केस में आई थिंक मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी लगा के आऊँगा यार, कि जितना मैं समझ पाया हूँ इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। 2 रूल है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे कह रहा है डिसिप्लिन अथॉरिटी ना कई बार कंप्लेंट होती है अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन दिस टू दिस। एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड कॉल्ड। बोला जाता है उसको डिसिप्लिन अथॉरिटी। प्रेसिडेंट है डिसिप्लिन। प्रेसिडेंट में इम्पोज एनी प्रेसिडेंट तो देंगे। कहता है कि एनी ऑफ द पेनल्टी बोलते हैं।
तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ का हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं। विच इन द फॉलोइंग पावर्स जो है कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द करंट ड्यूटीज। ये रहा, यही तो पढ़ा मैं। they are given में क्या हो जाता है, शोर हो जाता है मैं इसके, तो हमने पढ़ा काम में है। ऑफिसर करंट ड्यूटीज ऑफ पोस्ट कैन नॉट powers and responsibilities administered by their own officer। तो ये बता है कैन नॉट बी आपका आगे बात करेंगे हम। in terms of CCA, after the completion of production of evidence, okay, the next step for the inquiry authority to do the inquiry and submit the report presenting of complete कर लिया for production of evidence, the next step the inquiry of inquiry and submit inquiry report hearing the presenting of given by the government servant, allowing them to file written briefs of their respective cases case of desire permit the answer है। then there is another to your writing the present। And when the case of discipline, the government will be required to state its defense orally or in writing, as a defense is orally or as a copy of their case declaration inquiring after a complaint। चलिए अगला चलते
In respect of which of the following activity conduct rule are conduct rule will conduct? आई थिंक तो हमारा CCS CCA यहाँ कवर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है अपने CCS के जो रूल्स है वो किया आज। ठीक है, फाउंड दम इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा आज ये क्वेश्चन देख के। तो विद दिस थैंक यू सो मच। एंड आप जो कह रहे थे कि अगर हम चाहें कुछ रूल्स को, जैसे हमने आज एक बार इनको पढ़ लिया है, फिर इनमें से कुछ रूल्स जैसे हम जस्ट रीड करना चाहें अगर, फिर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इधर हम इसको क्वेश्चंस को जो है पढ़ के और इस तरीके से देख सकते हैं। आई थिंक एक बार यही अच्छा रहेगा कि एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं, दैट मूव अहेड। So with this, thank you so much and have a great day.